Bismillahirrahmanirrahim. Respected guest speaker, DPO Ziyarat, Mr. Adil Akbar, honorable principal, esteemed teachers, and dear Alijarians, Assalamu alaikum. Before we begin today's awareness session, I would like to invite Mr. Zainullah from class 10 for the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Dear Alijarians, it is indeed an honor for us to welcome a remarkable, energetic and passionate personality, Mr. Adil Akbar, as our distinguished chief guest. Today, on behalf of Alijra Residential School and College Ziyarat, I extend a warm and heartfelt welcome to you, sir. Now, briefly, I would like to share with you the impressive contribution and services of Mr. Adil Akbar. Sir has remained SPCIA Quetta since December 2023 and DPO job for 5 months, SP Sadr Quetta for 7 months, SDPO Airport Circle Quetta for 3 months, PSO to IG Frontier Constabulary Peshawar for 1 year, SDPO Turbat for 1 year, ASP Quetta and belongs to Gujranwala. Now he is serving as a DPO there. My dear students, it is of great importance to mention that Sir Adil Akbar has completed his graduation BS Honours in Political Science from the GC University Lahore. He has done his MPhil in Governance and Public Policy from the National Defence University Lahore. Dear Alijarians, it is great importance and honor for me to mention that Sir Adil Akbar has secured 2nd position in CSS all over in Pakistan in 2017 and remains written topper, essay scoring 70 out of 100. Now I would like to invite our esteemed guest speaker, DPO Ziyarat, Mr. Adil Akbar, to grace the stage and continue today's session. Please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you so much for such a hospitable welcome. And it's always feel like home whenever I enter in this institute. And it's a matter of similar honor and privilege for me to talk to you at this auspicious occasion and all the faculty members and as well as the students and especially the aspirants of civil service. So before start of this, I don't call it a lecture, but rather it's a dialogue. It's a dialogue between you and me. Rather, what I speak or what I talk to you, it means that I'm just delivering what is in my mind or thoughts, and that's called a monologue. And I'm not always in a way to communicate through one way or a single side. I want to know that what questions are cropping in your minds so that I can answer those questions. So that is even more effective way of communication. So this session would be around 1.5 hours or 1 plus 15 minutes. So I would like to initially some sort of initial guidance to you. Then we'll take questions from anybody, all of you. And I would like कि जो मेरा part हो वो कम से कम हो और इसको मैं bilingual रखूँगा इसके लिए माशाल्लाह. Since I have already attended your functions, so you are well conversant with Urdu, even Arabic and English. तो अरबी तो मुझे नहीं आती, लेकिन English, Urdu और बाकी उस पर इंशाल्लाह आपको मैं कर दूँगा. तो the first portion of my today's session is about what is CSS, क्या subjects होते हैं, क्या duties होते हैं आपके, क्यों करना चाहिए ये, कुछ मैंने चीज़ें आपके लिए उसमें लिखी
उसको मैं उसी तरह ब्रीफली करूंगा। अगर बोर्ड शोट हमारा यहाँ से दरमियान में कोई है सो दैट के यहाँ इधर ही करना इसको ना। एंड द सेकंड पोर्शन जिसका हम मेजॉरिटी पोर्शन कहेंगे वो हमारा क्वेश्चन से होगा। आपको बिल्कुल झिझकने की, परेशान होने की, वर्दी से करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप में से बहुत ज्यादा लोग माशाल्लाह यंग चेहरे वो देख रहा हूँ जो इंशाल्लाह कल के दिनों में इसी जगह पे आके इसी तरह वर्दी पहन के खड़े होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो कंसीडर मी एज योर एल्डर ब्रदर। व्हाट टू स्पीक ऑफ ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट, सीएसपी, वो हम एक अलग स्कूल ऑफ उस पे हैं। यहाँ पे हम जब क्लासरूम में हैं तो हम इस मोड में हैं कि मैं एज आपका टीचर भी उस पर कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, या मेंटोर कह सकते हैं आप सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए, पीसीएस के लिए। तो इस पे आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। जिसको जो क्वेश्चन है दरमियान में आता है वो लिख ले अपने पास। जहन में सोच आती है कि सर फलां कभी मैंने किसी से नहीं पूछा, ये पूछूंगा मैं। ठीक है, तो आप मैं इनकरेज करूंगा एंड इट विल बी अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर मी कि इफ आई फाइंड द मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो मैं जब खत्म करूंगा तो मुझे क्वेश्चंस आने चाहिए। ये ना हो कि आप खामोशी से सुनते रहे बस कि ठीक है सर चले गए हैं। और कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि गैप बहुत ज्यादा है, इतना गैप नहीं है। आप माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं और अच्छे उस पे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट उसके लेते हैं कि जो हमारा उस पे लिखा है CSS, PCS and PMS. What does it stands for? Anybody? Any volunteer? इसका क्या मतलब है CSS का? Yes. Central Services. Yes sir. No problem. Central Superior Services. Central Superior Services. शाबाश. Good. Superior Services. Pardon my accent or the way I write. माजरत चूंकि मैंने ब्लैक बोर्ड से बहुत कम लिखा है तो मैं टीचर तो उस पर नहीं था, इसलिए अगर समझ ना आए तो मुझसे स्पेलिंग पूछ लीजिएगा। What is PCS? Anybody? Provincial Civil Service. Good. And finally, what is PMS? Provincial Management Service. So, सबको नजर आ रहा है? ये जो है ये सेंटर की सर्विस है जिसे हम फेडरेशन कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ आपकी आसानी के लिए मैं लिखूं तो ये इस्लामाबाद की जो सर्विसेज है वो CSS है, जो जिसका मुकाबला पूरे पाकिस्तान में है। ठीक है, इस एग्जाम में तमाम के तमाम अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में से, सिंधी, बलोची, पश्तून, पंजाबी, कश्मीर, जीबी, तमाम उसमें। ठीक है, CSS का इम्तहान थोड़ा सा मैं उसके लिए शायद आपको पता भी होगा, कुछ उसके नहीं। हर साल CSS का इम्तहान फरवरी में होता है। हर साल इसकी सीट्स आती हैं लाजमी तौर पे, और इसके अंदर क्या क्या आप बन सकते हैं वो हम अगली इस पे मैं बताऊंगा। तो CSS इज वफाक की हमारी सर्विस जिसपे हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, सेकंड इज प्रोविंशियल सर्विस, सिविल सर्विसेज, व्हिच इज इन सम ऑफ द प्रोविंसेस इट इज कॉल्ड PMS, इन सम ऑफ द प्रोविंसेस इट इज कॉल्ड प्रोविंस PCS। ये दोनों सेम चीज है। पंजाब में उसको PMS कहते हैं, KP में उसको PCS कहते हैं, बलूचिस्तान में PCS कहते हैं, और सिंध में मेरा फिर PMS ही कहते हैं। इसके जरिए से इसका लाजमी नहीं है कि हर साल पेपर्स आए, ये वेरी करता है। अभी थोड़ी सी तरतीब इसकी कोई बन गई है, लाइक 2 years, समटाइम्स एवरी ईयर भी आते हैं, लेकिन 3 साल भी लग जाते हैं। ये सूबे की सर्विस है। इस पे आपकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है, किसी भी सूबे में। इस पे इन दोनों के अंदर जिस सूबे से आपने क्वालिफाई किया है, लेकिन जिस तरह आप तमाम बलूचिस्तान से हैं, तो बलूचिस्तान का जो PCS है उसके अंदर कुछ सीट्स हैं असिस्टेंट कमिश्नर की, कुछ DSPs की, कुछ सेक्शन ऑफिसर्स की, कुछ ACs, इस तरह वो आप इस पे कर सकते हैं अप्लाई। ये आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये कंपैरेटिव एग्जाम्स हैं जिन पे आप डायरेक्टली 12 पेपर्स के होते हैं, वो हम इस पे बताएंगे। प्रोसीजर सबका सेम है। ये प्रोविंशियल सर्विस है, ये फेडरल सर्विस है। आज हम फेडरल सर्विस पे बात करेंगे, मेनली आपको बताएंगे। ठीक है,
इस पे किसी को कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो क्लियर? अच्छा, वैसे मैं स्टार्ट उससे करने से पहले देखते हैं कि हम सीएसएस के लिए के इतने और प्रोफेशंस हैं, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, लोग बहुत ज्यादा उसमें होता है। वाई सीएसएस? क्यों? यही क्यों? बंदा कहता है ना कि यार मैं फलां बनना चाहता हूँ, फलां बनना चाहता हूँ, लेकिन सीएसएस ही क्यों करना चाहते हैं? इसमें जो आपको मेन मैं मोटिवेशन और उस पर वो करूँ जो मेरी थी, जिसको उस पर वो करे, तो इस पे जो एक अगर वन वर्ड में मैं डिफाइन करूँ, सिर्फ वन वर्ड, वो है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब पता है आपको सबको? इम्पैक्ट कैसे? अब हम एक मिसाल के साथ करते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे में से ये तमाम सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी के यहाँ बैठे हैं। अगर हम कंसीडर करें कि जो आप सब के सब सिविल सर्विस या सीएसएस के एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके कॉन्ट्रेरी एक दूसरे कमरे के अंदर इसी तरह मैं कोई भी प्रोफेशन को ना बिलिटिल करूंगा, ना ऊपर है कोई नीचे है, ये हमारी चॉइसेस है। अगर हमने कंपैरेटिव एग्जाम का किया तो हमारी चॉइस है, हम इसके जरिए से कुछ इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। ये नहीं है कि जो बाकी हैं वो कर नहीं रहे, टीचर्स जो हमें बनाने वाले हैं, लाइक ऑल ऑफ यू, मुझे जहां तक लाने वाले मेरे टीचर्स थे, सबसे नोबेल प्रोफेशन तो हम कहेंगे तो वो है। लेकिन इसके साथ साथ जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं वो ये है कि वाई सीएसएस। फॉर इंस्टेंस के हमारे साथ वाले कमरे में और उसके साथ वाले कमरे में दो और इसी तरह आप लोगों के सेशंस चल रहे हैं। एक में सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, डॉक्टर्स बनने के लिए एमबीबीएस करेंगे, प्री मेडिकल में जाएंगे, फिर उसके बाद एमबीबीएस करके डॉक्टर बनके क्वालिफाइड हो जाएंगे। उसके साथ में इंजीनियर्स बैठे हैं, ठीक है, जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में की, उसके बाद जाके इंजीनियर बने, कोई इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल इंजीनियर बने, कोई चीज बन गया। उसका मैं आपको आज इम्पैक्ट ये बताता हूं कि फॉर इंस्टेंस मैं पहले उसमें डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस इज नॉट अबाउट बिलिटलिंग एनी प्रोफेशन। सब प्रोफेशन उस पे हैं, अपने अपने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंक्शंस हैं, लेकिन उसका फर्क कितना है। लाइक एक डॉक्टर जो है वो एक दिन के अंदर कितनी जिंदगियां बचा सकता है? 10, 15, 20। वो बहुत ही आउटराइटली वो जाएगा तो 18 घंटे काम करता है तो वो 40 बंदों को वो मेडिसिन देता है या ऑपरेट करता है। इतना तो पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली कि 40 बंदों को वो खुद ऑपरेट करे। तो एक दिन में उसने 40 बंदों के लाइफ के ऊपर इंपैक्ट किया, ऐसे ही है। इसी तरह चलते हैं कि इंजीनियर कोई भी सिविल इंजीनियर लेते हैं, सिविल इंजीनियर ने फॉर इंस्टेंस एक पुल बनाया, ठीक है, उस पुल के ऊपर से रोज 2000 गाड़ी गुजरती है। एक ब्रिज बनाता है, ये वैसे उसके लिए आपके कर रहा हूं, और उसके ऊपर 2000 गाड़ी गुजरती है। या उसने वो तामीर की बिल्डिंग, उसके अंदर 400-500 बंदा रिजाइड कर रहा है, आपका कॉलेज बनाने वाला एक इंजीनियर था, ठीक है, उसका इंपैक्ट का लेवल है 40 बंदों तक एक दिन की। इसका है 2000 गाड़ी गुजरने तक या 5000 बंदों को फैसिलिटेट करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके कंपैरेटिवली एक सीएसपी का इंपैक्ट क्या होगा, मतलब जो आप बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। फॉर इंस्टेंस आप असिस्टेंट कमिश्नर पहली स्टेज पे आते हैं, आपको पता है एक हमारा अच्छा फैसला, एक एसपी का इंसाफ एक दिन का, या एक डीसी का एक दिन की जो उसकी है पॉजिटिव वे में प्रोग्रेशन, उसका इंपैक्ट उस इलाके के, चले मैं बलूचिस्तान से कंपैरिजन करूं तो यहाँ जो बड़े जिले हैं उसमें 1 लाख तो आबादी होगी ना, कम से कम 1 लाख होगी, कोयटा में तो बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरी तहसील है गुजरावाला में कामों की, छोटी सी तहसील है, उसकी आबादी है 15 लाख, और उसके अंदर एक डीएसपी या एएसपी होता है जो हम डायरेक्टली आते हैं, और एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है। तो अगर ये दो बंदे सिर्फ एक दिन ठीक काम करें और इनकी पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूशन आए तो उसका इंपैक्ट कितने लोगों पे आएगा? 15 लाख। ये आपकी पहली सीढ़ी के ऊपर है। अभी आपने एसी के बाद डीसी, डीसी के बाद कमिश्नर, कमिश्नर के बाद सेक्रेटरी। चूंकि मैं इसकी मिसाल इसलिए देता था कि जब मैं सेक्शन ऑफिसर था मैंने सीएसएस 2 बार किया, आपको इसके लिए बताऊं। पहली बार 2014 में किया, देन आई क्वालिफाइड इन ओएमजी। ओएमजी कॉल्ड नॉट ओ माय गॉड बट इट्स ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। तो ओएमजी में मुझे एक अजीब इत्तेफाक हुआ, ये सर आपके इसमें भी इंटरेस्टिंग है। वन ऑफ माय एडिशनल सेक्रेटरी जो ओएमजी के थे,
DMG के थे। तो एक बार मैं उनके पास एक फाइल लेने के लिए साथ डिस्कस करने के लिए उनके दफ्तर बैठा हुआ था। तो मैं सेक्शन ऑफिसर था, नेशनली उसकी पहली होती है सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 17 में। तो एक बंदा आया, डॉक्टर था हमारे ही डिपार्टमेंट में। आई सर्व्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज फेडरेशन के अंदर 3 साल सेक्शन अफसर रहा, पहली दफा जब CSS किया। फिर पुलिस में चूंकि ऑपरेशन था, पुलिस में आया। जो बंदा एंटर हुआ तो उसके साथ उन्होंने बड़ा इनफॉर्मली गपशप की, ऐसे जैसे कि हम कुलीग आपस में मिलते हैं, दोस्त यार हों। हालांकि मैं जानता था कि ये डॉक्टर हैं और एडिशनल सेक्रेटरी साहब ओवरऑल पूरी हेल्थ को देख रहे थे। तो जब वो चले गए तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर ये कौन साहब थे आपने बड़ी आज इनको जो है ना वो गर्मजोशी से वो किया। वो कह रहे थे कि यार ये डॉक्टर है, हम दोनों प्री मेडिकल में दोनों इकट्ठे हुए अपीयर, इनका मेरिट बन गया और ये MBBS करके किंग एडवर्ड में चले गए, जो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारे पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई डॉक्टर का कहे तो किंग एडवर्ड का नाम आता है। वो किंग एडवर्ड में चले गए, उन्होंने 5 साल तक अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की और डॉक्टर बने। डॉक्टर के बाद वो अपना सीनियर डॉक्टर बने या प्रोफेसर बन के, उनकी जो इसमें आता है फर्दर। और कॉन्ट्रेरी कहते हैं यार मेरा मेडिकल में एडमिशन ना हुआ, मैं बड़ा डिसहार्ट होके मैं चला गया गवर्नमेंट कॉलेज में, जाके मैंने एडमिशन ले लिया BS के अंदर। BS शायद हिस्ट्री किया या आई डोंट नो, कि याद नहीं है कौन सा था। आफ्टर 5 years ही बिकेम डॉक्टर। आफ्टर 4 years उनकी ग्रेजुएशन हुई और 1 साल बाद उनका CSS हो गया और वो शायद OMG में आए, हालांकि अपने डिजायर ग्रुप में नहीं आए, जो कि अच्छे ग्रुप समझ किए जाते हैं, जो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो अभी पॉइंट ये बताने की बात है कि सी द इम्पैक्ट कि आज वो डॉक्टर साहब उनके पास अपनी प्रमोशन का एक केस लेके आए थे। ही वाज इन स्टिल इन ग्रेड 18 एंड ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर हिज प्रमोशन एंड ही वाज हेडिंग जस्ट वन हॉस्पिटल in the vicinity of Islamabad, and his counterpart, his friend who has failed in that FSC, he was holding the entire health department of federation. उनके नीचे पूरे पाकिस्तान के हेल्थ के जितने डॉक्टर्स थे वो सारे उनके अंडर कमांड में थे, तमाम की वो हेल्थ पॉलिसी बनाते थे। उसकी मिसाल उन्होंने जिस तरह दी कि दिल बेटा देखो, अगर तुम रोज ये करते हो ना 10 बंदों की वो कर देते हो, तो अगर मेरा एक फैसला ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप की मैं एक मेडिसिन काम करता हूं ना, तो मेडिसिन 22 करोड़ लोग खाते हैं। तो सोचो अगर मैं ठीक फैसला करूंगा तो एक फैसले के ऊपर 22 करोड़ लोग डिपेंडेंट है। सो दिस इज द इम्पैक्ट। अगर कोई आपको कहे कि यार नहीं यार छोड़ो इसको, ये कुछ नहीं है, तो आपके पास पहला आंसर होना चाहिए कि आई वांट टू क्रिएट द इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट हमेशा लार्ज स्केल पे आपको डालना है। हम आप हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन और एक एक स्टेप की वजह से मुआशरे ने आगे जाना है। गॉट इट? तो ये आपको मैंने आपका मैग्नीट्यूड बताया कि वाई CSS, इसलिए CSS के इसकी वजह से हमारा बाकी जो चीजें इसमें मैं बोलना शुरू करूं तो शायद मैं गड्ढा लग जाऊं कि इसमें आपका एक्सपोजर होगा, इसमें आपकी डाइवर्सिटी आएगी, इस पे आपको हार्ड एरियाज, अभी जब पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहे थे वाज टू जनरस रादर कि इतनी उसका नहीं है, लेकिन एट दिस एज ऑफ 31 आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस पाकिस्तान। लाइक मैंने अगर कम से कम भी होगा तो 70 सिटीज तो पाकिस्तान के देखी है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अदरवाइज आई बोर्न इन गुजरांवाला, मैं मैक्सिमम लाहौर जा सकता था, इस्लामाबाद चला जाता है एक बार 2 बार। सो द डाइवर्सिटी, द पीपल यू मीट एंड द कल्चर्स यू अटेन फ्रॉम दिस सर्विस, वो सारे सब्सिडरी बेनिफिट्स हैं सारे आपके साथ। आप मैंने सिंध देखा, मैंने KP में सर्व किया, पंजाब में सर्व किया, बलूचिस्तान में कर रहा हूँ, पता नहीं फ्यूचर में GB जाएंगे, कश्मीर जाएंगे। सो अपनी लिमिट सोच को हमने सबके लिए कि बलूचिस्तान के एक जिले तक या इस सूबे तक महदूद नहीं करना। हमारी लिमिट इनिशियली पाकिस्तान एंड देन द वर्ल्ड। उसके लिए ये बताऊं कि मैं अभी रिसेंटली आई गॉट सिलेक्टेड इन UN एज वेल, यूनाइटेड नेशंस की पुलिस में मेरा हुआ है शॉर्टलिस्ट, तो शायद मैं भी बाहर भी जाऊंगा एज ए UN पोल के ऊपर। तो यू गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थ्रू दिस वे। ये नहीं कि बाकी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, लेकिन बाकी आपके विंग्स को क्लिप कर देंगे, लिमिटाइज कर देंगे छोटे लेवल तक। सो यू हैव टू क्रिएट अ लार्जर इम्पैक्ट। गॉट इट? अभी हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। एक मैंने वर्ड, जब भी मैंने कभी, वैसे तो मैं टीचर नहीं रहा किसी भी उसमें, सो बेग योर पार्डन अगर आपको लगे कि थोड़ा सा टीचिंग स्टाइल जो डिफरेंट होता है उस पर वो है, लेकिन ये है कि वंस I got second position, तो I used to deliver motivational lectures to the students, to the aspirants। आप तो भी बहुत यंग हैं, तो वो थे बच्चे जो CSS की तैयारी कर रहे थे, अकेडमी ने मुफ्ती बुलाया तो उसमें मैंने किया। तो उन्हें मैं 1 वर्ड बोलता था, सिंपल करके बोलूंगा इसलिए कि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी।
ये दो वर्ड है, एलिमिनेशन वर्सेस सिलेक्शन। आपको पता है इसका? सिलेक्शन ये है कि मैं किसी को 10 को सिलेक्ट कर लेता हूं, जी आप आ जाए, ठीक है। एलिमिनेशन ये है निकाल दो, मैं 90 बंदों को निकाल दो और 10 बंदों को रख लूं, ठीक है। दोनों एक ही चीजें लग रही हैं आपको, लेकिन दोनों में इतना फर्क है कि ये जो चीज है ना, ये वर्ड आपने अपने जहन में थमा लेना है। जो CSS या PMS या PCS है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। हाउ? हम अब सब बैठे हैं, लाइक 100 बच्चा अगर बैठा है, तो इसमें से जो पेपर देगा बोर्ड के, जो एग्जाम यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, वो सबको मिल जाएगी। किसी को A ग्रेड मिल जाएगा, किसी को C मिल जाएगा, किसी को A+ आ जाएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, बट दैट इज डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारे यहाँ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। अभी ये थोड़ी सी बात आपको झटका भी देगी और डाउन करेगी, लेकिन डाउन होना नहीं है, इससे मोटिवेशन आप ले लेनी है कि हम में से नहीं है जो उसमें सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी 2023 के फैक्ट्स थोड़े से शेयर करूंगा। CSS 2023 का जो फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है, ये एलिमिनेशन के साथ कनेक्ट कर रहा हूं इसको। उसकी जो परसेंटेज थी वो थी 2.09%। इसका मतलब समझते हैं? 98 एलिमिनेट हुए। प्रिंसिपल साहब ने जिस तरह कहा कि अगर 100 बच्चे पेपर में बैठा है तो 2 पास, 98 फेल। अब ये आपको थोड़ा सा डाउन करेगी कि अच्छा यार, ये तो वैसे ही हमें बातें सुना रहे हैं कि ये अगर 100 में से 98 फेल है तो हम तो फिर फेल ही समझे ना, ऐसे नहीं। टोटल मैं आपको बताऊं जो उसकी फिगर्स जो FPSC ने अपनी वेबसाइट पे बताई, 18,000 लोगों ने पाकिस्तान में से अप्लाई किया। 18,000 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फॉर्म सबमिट करवाया, उसमें से 14,000 बंदों ने रिटर्न एग्जाम के अंदर बैठे, जिन्होंने पेपर दिया रिटर्न एग्जाम का, ठीक है। सॉरी, जो MPT में हुई, अब एक MPT आ गया हुआ है नया प्रोसीजर है जिसमें वो MCQs बेस्ड टेस्ट लेते हैं। MPT थे 14,000। इसके बाद बचे 10,000 बंदे। 10,000 बंदों ने रिटर्न एग्जाम दिया, जो कि 12 पेपर्स होते हैं, मैं इसके बाद अगला आपको वो बताऊंगा। उस 10,000 में से 470 लोगों ने रिटर्न पास किया। कितना? 10,000 में से 470 लोगों ने रिटर्न पास किया। रिटर्न के बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद 220 लोग अफसर बन गए, फाइनल जिनकी एलोकेशन हुई, जिन्हें हम CSP कहेंगे, सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सो कहां से बात? 18,000 से कहां तक बची है? 220%, 2.09। इसमें फर्दर डिमार्केट करूं तो इसके अंदर आगे 12 ग्रुप्स हैं, जो मैं बात वो पहले किया था OMG। इसमें से 20 ASP हुए जो कि पुलिस सर्विस में आए, और 20 PAS जिसे हम DMG कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये 20-15-20 का फिगर चलता है कि हर साल जो टॉप 40 या 50 आप करें, ये वो लोग हैं जो जिले को कमांड करने के लिए पाकिस्तान में सिलेक्ट हुए। अगर आउट ऑफ द गोस्ट में जाएंगे तो फर्दर तो बहुत बड़ी फिगर है, लाइक सारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं है इसमें। तो 22 करोड़ में से, या 24 कर लें, 24 करोड़ पाकिस्तान की, उसमें से इन 24 में से आना है। हर करोड़ के पीछे एक बंदा है, एक ASP बनेगा और एक AC बनेगा। इस CSS की बात कर रहा हूं, उसके साथ साथ प्रोविंस का भी है, उसका एक अपनी डोमेन है, उसका कभी हम अगले सेशन में या फिर कभी बताएंगे आपको। बट ये सारा बताने का मकसद ये था कि ये है एलिमिनेशन। इस पे हमें वो रख नहीं रहे, इस पे हमें वो निकाल रहे हैं। हमने उनको मजबूर करना है कि नहीं, मैं ही फिट हूं और मैं ही, मेरे बगैर जो है ना, जब तक मुझे नहीं रखोगे तो आपका पूरा वो नहीं होगा। इसकी मैंने आपको इसलिए बता दी कि डाउन नहीं होना, परेशान नहीं होना। हमने जब पिछली दफा मैंने आपको लेक्चर उसमें दिया था तो ये सारे थे मेरे। So I told you कि I have never graduated from LUMS, from Harvard, from the Saudi Public School या HSN। मैं आपकी तरह बिल्कुल प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स चेयर्स के बगैर उससे पढ़ के अगर हम इसकी टॉप में आ सकते हैं, I got second, तो why not we? ठीक है। तो ये था सिर्फ आपको स्टार्टलिंग फैक्ट्स बताना कि दिस इज द लेवल ऑफ कंपटीशन यू हैव टू कम्पीट। लेकिन इन्हीं में से करना है आपको। तो एक चाहिए ना सीट, हर किसी को एक सीट चाहिए ना, और ये हर साल आनी है।
ठीक है, तो अगर 100 बच्चा भी है ना तो 4 सालों में हमारे 100 के 100 बच्चे आ सकते हैं इसमें। तो हर बच्चा पोटेंशियल कैंडिडेट है। ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ एंड पुट योर मैक्सिमम एफर्ट्स, इंशाल्लाह ऑल ऑफ यू विल गेट सिलेक्टेड। और इसका सबसे बड़ा फायदा इसको बताऊं, जो हमारे टीचर थे जिन्होंने हमें तैयारी कराई, उन्होंने कहा कि बेटा आप सीएसएस की तैयारी कर लो सिर्फ एक एग्जाम की, उसके साथ साथ जो बाकी आपके एग्जाम है ना, जो पीसीएस है, जो 1 पेपर आता है, आईबी के हैं, एफआईए है, नैब है, बाकी एबीसी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके 1 पेपर्स एग्जाम है, वो आपके वैसे ही निकल जाएंगे इसमें से। तो दिस थिंग आई रियलाइज्ड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सीएसएस एंड पीएमएस। मैंने सर ये देखा कि जब हम पेपर्स देने जाते थे तो जो सीरियस कैंडिडेट्स होते थे ना टोटल पाकिस्तान में से, सीरियस जो वाकई था जिनके साथ आपका मुकाबला होता था, वो ये 14,000 नहीं है, वो टोटल 2,000 है। ये 2,000 वो है लोग हैं जो वाकई मेहनत करके फोकस्ड अप्रोच के साथ जाते हैं, इन्हीं के साथ आप कंप्लीट करते हैं। इनका जब किसी का सीएसएस हो जाता है, किसी का पीसीएस हो जाता है, किसी का 1 पेपर हो जाता है, किसी को नैब में चला जाता है, कोई जैसे जैसे के लोग एलोकेट होते जाते हैं अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपने उसके बलबूते पे, तो आपके लिए स्पेस बनती जाती है। बाकी ये जो जितना आया हुआ है ना वो सिर्फ टाइम पास के लिए आएगा, तो कहेगा ठीक है, सिर्फ लाइक इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं एक दफा एक बंदे को था, तो जब पेपर दे के आखिरी पेपर में मिला उसे, मैंने कहा यार मैं तो आखिर तक बैठा रहता था, तुम बड़ी जल्दी पेपर दे लेते थे। वो कहता सर मैं यार इसलिए देने आया था पेपर कि मैं अपने बच्चों को बता सकूँ कि मैंने पाकिस्तान का सबसे मुश्किल एग्जाम दिया था, तो मैंने सिर्फ एग्जाम देना था, आगे कोई नहीं करना। तो वो भी लोग हैं, तो इसलिए ये आपको सारा बताने का सिर्फ ये था कि इस पे हमने जोर अपनी जान का पूरा लगाया है। तो एलिमिनेशन है, सिलेक्शन नहीं है। ये ना समझना कि डिग्री है, बोर्ड की तरह के तमाम को डिग्री मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे ग्रेजुएट हुए हर एक को उन्होंने हाथ में 5 साल के वक्त थमा देना है। यहाँ ऐसे भी हैं कि जिनको पूरी उम्र लग गई, 3 अटेम्प्ट्स हो गई, सॉरी बताना भूल गया, सीएसएस की 3 अटेम्प्ट्स है टोटल आपके पास लाइफ में, पीएमएस की या पीसीएस की भी 3 है, 3 बार दे सकते हैं आप, ठीक है। तो 3 और 3 6, इसके बाद वो जुडिशरी है अगर कोई उसमें जाता है वो भी 3 है, और देन 1 पेपर तो फिर उसमें अनलिमिटेड है। सो इनके ही दरमियान में हमने वो खेलना है, वो करना है, ठीक है। जिस चीज का कोई जो क्वेश्चन है वो जेल में लिखता जाए। आगे है सीएसएस के सिलेबस, सीएसएस के चीजें जिनकी बहुत मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको ब्रीफली बता दूं। सीएसएस के अंदर टोटल रिटन एग्जाम होता है। चलिए एमपीटी अभी आ गया, क्योंकि हमने एमपीटी नहीं दिया था, ये नया एक इंट्रोडक्शन हुई है, और फिर उसके बाद एक इंटरव्यू है। सबसे मुश्किल फेज ये है, और इसके अंदर सबसे मुश्किल फेज इंग्लिश ऐसे है। एमपीटी एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है। जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, बीए, सिंपल बीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल कोई भी हो सकती है, या बीसीएस, आईसी, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए आपको क्वालिफिकेशन के लिए। एमपीटी 200 नंबर का होता है, इसके अंदर आपने सिर्फ 66 नंबर लेने हैं टोटल, और ये आपका क्लियर हो जाता है। ये अभी उन्होंने नया इंट्रोड्यूस करवाया है, ये इतना मुश्किल नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह जिस तरह इंडिया में प्रीलिम्स उनके होते हैं। तो ये समझ ले कि आप सबके लिए हल है। इसमें आपको लगेगा कि 4,000 बंदे ने दिया तो उसमें से 3,900 बंदा पास हो गया, ठीक है। 600 नंबर लेना मुश्किल नहीं है इतना। एमसीक्यूज के अंदर भी फर्दर डिटेल है, वो भी आपकी स्टेज नहीं है कि आपको बताया जाए, वो जब इंशाल्लाह आप उस पे आएंगे तो फिर हम आपको बता देंगे। रिटर्न है 1200 नंबर, ठीक है। इंटरव्यू है 300 नंबर टोटल। इस 1200 में से आपने मिनिमम 600 नंबर लेना है, 50%। रिटर्न के अंदर 600 नंबर आपने लेना है, और हर सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 40 नंबर लेने हैं, जो कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लैरिटी है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये जो 1200 नंबर है, इन 1200 नंबरों को हम अगर डिफाइन करें तो 12 सब्जेक्ट्स होंगे। इसमें 6 कंपल्सरी, 6 ऑप्शनल। कंपल्सरी में इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश एसी एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी,
This is current affairs, Pakistan affairs, Islamic studies. 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स हैं। हर सब्जेक्ट के 100 नंबर हैं और हर में से आपने 40 नंबर लेंगे तब आप इसमें पास हैं। 6 सब्जेक्ट्स ये कंपल्सरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, इसमें आपको सबको यही लेने पड़ेंगे। और इसमें सबसे मुश्किल ये पहले 2 पेपर्स हैं, इंग्लिश एसए और इंग्लिश टेस्ट सी। जो मैंने पहले फैक्ट्स बताए थे आपको, उसमें मैं आपको बता दूं कि अगर 10,000 में से 400 कितने बताए थे मैंने, 70 लोग पास हुए थे, तो उसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो 9,000 बच्चा सिर्फ इंग्लिश एसए और प्रेसी में फेल हुआ। ठीक है, इन 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर 9,000 बच्चा फेल हुआ था, बाकियों में सारों में 40 ले ही लिए थे उन्होंने। तो पॉइंट इज के ये हमारी अब आज से पंच लाइन होगी हमारी सबकी। इन 2 को हमने, चाहे आपने भी आगे 5 साल बाद जाकर अपीयर होना है या अगले किसी ने 3 साल बाद हो जाना है, तो हमने इसको आज से स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें आपने शुरू कर देनी है। ठीक है, इस तरह मुझे बताया गया। ये 6 आपके ये हो गए। 6 इसी तरह ऑप्शंस हैं, ऑप्शन मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन जिस तरह मेरी थी पॉलिटिकल साइंस था मेरा, बीइंग मैं पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर्स किया है। इसके 2 पेपर्स होते हैं, 100 नंबर का एक और 100 का दूसरा। इसमें आपके कॉन्टेक्स्ट में जाए तो बलोची रख सकते हैं आप, कोई इकोनॉमिक्स रख लेता है, कोई आईआर रखता है, कोई पंजाबी रखता है, जो भी इसमें पूरी लिस्ट दी हुई है, वो एफपीएससी की वेबसाइट पे मौजूद है। अभी स्टेज पे आपको बताना वो मुनासिब नहीं है, लेकिन 600 नंबर इसका है, 600 नंबर इसका है, दोनों को मिला के आपने 1200 में से 600 नंबर टोटल लेना है। 600 में से जितने आप ऊपर नंबर लेते जाएंगे उतने ही अच्छे ग्रुप के अंदर आप एलोकेट होते जाएंगे। अभी हम अभी इसके बाद जो लिस्ट जो मैं दूंगा वो ग्रुप्स के मुताबिक होगी कि सीएसएस के बाद आप किस तरह ग्रुप्स के अंदर एलोकेट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? इनको पास करने के बाद दोनों को हमारे पास सीएसएस के 12 उन्हें कहते हैं ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स या सर्विसेज, जिसके अंदर आपको एलोकेट किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई सर्विस ऊपर या नीचे की वेरिएशंस डिपेंड करता है कि उसका क्या है, लेकिन वैसे नॉर्मली कुछ लोग पुलिस को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग पीएस को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग थाना सर्विस को करते हैं, तो ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है। वैसे मैं आपको सिर्फ बता दूं, इस पे सब PAS पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, PSP पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, FSP फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो एम्बेसडर बनते हैं हमारे, PCS पाकिस्तान कस्टम सर्विस, कस्टम्स के आपके AC कस्टम्स, DC कस्टम्स सुनते होंगे आप लोग। देन IRS इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, AC इनकम टैक्स, DC इनकम टैक्स, कमिश्नर इनकम टैक्स सुने होंगे। MLCG मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट ग्रुप, जो कैंट के अंदर ACs का रोल अदा करते हैं या जो उसका कैंटोनमेंट ऑफिसर्स कहते हैं उनको, वो MLCG में एलोकेट होते हैं। जब आपकी जो मैंने बताया था ना पहले आपको, जैसे जैसे आपका मेरिट आता जाएगा उसके मुताबिक आपकी इसमें से कुछ ना कहीं सिलेक्शन होती जाएगी। फाइन, उसके बाद आएगा PAAS पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जो हमारे ऑडिट करते हैं, जो तनख्वाहें देते हैं अकाउंट्स में से। आप अभी तो नहीं है, हमारे सारे बैठे हैं अफसर, तो जो अकाउंट सर्विस में आएंगे वो ऑडिट एंड अकाउंट्स होगा। उसके बाद आ जाए ये वो सीरियल वाइज, इसको ये ना कीजिएगा सबसे ऊपर ये सबसे नीचे ये या वैसे रैंडम लिखे हुए लोग। OMG ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, सेक्रेटेरिएट के अंदर आप अक्सर सुनते होंगे उसका भाई सेक्शन अफसर लगा है, कोई एडिशनल सेक्रेटरी है, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी है, तो वो ये लगते हैं OMG में जो आते हैं। ये उन सारे 220 में से हैं जो फाइनल एलोकेट होंगे। ठीक है, मर्द खवातीन सबको मिला के। 9 इज पाकिस्तान रेलवे सर्विस, पाकिस्तान रेलवे सर्विस, रेलवेज में आते हैं।
फिर हमारा पोस्टल एंड सर्विस ग्रुप, पोस्टल एंड सर्विसेज, हाँ जी कौन सी रह गई भाई? नहीं SNGD तो यहाँ वाली है। तो हमारे और भी इसके बाद आ जाए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के अफसरान आते हैं। और वन लास्ट रह गया था हमारे पास, कॉमर्स एंड ट्रेड। SNGD जो है ना वो लोकल सूबे की रहेगी। सो ये 12 ग्रुप्स हैं। इन 12 ग्रुप्स के अंदर में से किसी में भी आपकी एलोकेशन हो सकती है। कॉमर्स एंड ट्रेड वो हैं जो हमारे कमर्शियल अटैची बाहर के मुल्कों में जाके प्रमोट करते हैं उसको। इंफॉर्मेशन ग्रुप आपने अक्सर देखा होगा जो प्रेस रिलीज जारी करते हैं, PM ऑफिस में भी होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर है। पोस्टल का पूरा निज़ाम है हमारे पास, रेलवेज, OMG, PES। तो इसमें मैं आपको वैसे उस पर बता दूं कि जो लोग एस्पायर कर रहे होते हैं तमाम उसमें से वो मेजोरिटी इन 2-3 को कर रहे होते हैं। सबकी कोशिश ये है कि टॉप 20, टॉप 50 या टॉप 70s में आए ताकि हमें अपना डिजायर्ड ग्रुप मिले। फिर ही करते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे ना पुलिस पसंद है ना वो पसंद है, मैं कस्टम में जाना चाहता हूँ, मुझे कस्टम पसंद है। कोई कहता है कि नहीं यार मुझे जो है ना मैं सेक्रेटेरिएट में मैं एक शामिल में रहना चाहता हूँ जिंदगी भर, तो वो ये कर लेता उस पर, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दूं कि जो रिजल्ट्स हैं पिछले 20-25 सालों के, मैं पहले दफा आया था OMG में आया था, मैं नॉट बाय चॉइस, अगली दफा मैंने इसको प्रेफर किया जो मेरी फर्स्ट उस पे थी। सो ऑल ऑफ यू विल एस्पायर फॉर दिस। अंग्रेजी में कहते हैं ना यू एम फॉर द मून सो दैट यू कैन लैंड ऑन द स्टार्स। तो हमने एम करना है इनको, फिर आगे जो भी हमारी किस्मत में हुआ और बाकी वो किस्मत भी डिफाइन करूंगा अभी इसके अंदर, क्योंकि अक्सर आपको किस्मत वाले भी बड़े मिलेंगे कि नहीं यार मैं तो बड़ी मेहनत की थी लेकिन इधर तो किस्मत और फलाना और उसके ऊपर होता है, उसको जो है ना नहीं मिलता। ये ठीक है, क्लियर है सबको? अभी हम लगाते हैं। इसके बाद वो छोटी सी मैंने चीज लिखी थी आप लोगों के लिए कि CSS करने के बाद 3 तरह की ट्रेनिंग्स होती है हमारी। सबसे पहले CTP उसको कहते हैं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें तमाम 220 के 220 जो सिलेक्ट होते हैं वो इकट्ठे सब लाहौर जाते हैं। जिस तरह आप सब लोग मुख्तलिफ जिलों से आए हैं उसी तरह 220 के 220 उसमें तमाम ग्रुप शामिल होते हैं, सब इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं 6 महीने की। उस 6 महीने के बाद वो अपनी अपनी स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। जिस तरह पुलिस की ट्रेनिंग होती है इस्लामाबाद में, PES की ट्रेनिंग होती है DMG की लाहौर में, कस्टम्स की ट्रेनिंग होती है कराची में, तो वो तमाम फिर सेपरेट हो जाएंगे। 30-30 40 का ग्रुप जो जो उसमें एलोकेशन होगी अपने STP में जाके वहां पे जाके इनकी 6 महीने की 6 से लेके 1 साल तक वो वेरी करता है आपकी STP होगी। STP के बाद फिर फाइनल आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग है जिसे हम यूटीशिप कहते हैं, अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर। जिस तरह मैं ASP UT कोयटा में था तो आगे 6 महीने उसके बाद फिर ट्रेनिंग होगी। तो इस प्रोसेस के बाद 1.5 साल तकरीबन हमें ट्रेनिंग में गुजारते हैं जिसमें वो तमाम ट्रेड सिखाते हैं, वो चीज़ें सिखाते हैं, गवर्नेंस पढ़ाई जाती है, लॉज पढ़ाए जाते हैं, आपकी उसके मतलब किया जाता है। सॉरी तो उसमें आपने जो है ना वो वेरी करता है कि आपकी, लेकिन वो स्टेज पे आपके लिए वो नहीं है। सिर्फ बता दूं कि 3 तरह की ट्रेनिंग होती हैं। उस ट्रेनिंग के बाद आपको किसी भी एक जगह पे पोस्टिंग मिल जाती है एज पर योर ग्रुप। अब हम जाते हैं कीज टू सक्सेस। ये स्पेसिफिकली CSS के मुतालिक आपको वो कर रहा हूं क्योंकि आपको बड़ी स्टोरीज मिलेंगी इसमें, बहुत ज्यादा बंदे कहेंगे कि हाँ ये मैंने भी अपना एक बनाया और फिर मैंने 1-2 बंदों से जब वो किया, इवन इंडियन सिविल सर्विस से भी वो निकाला कि अच्छा उनमें क्या था ये वाला। तो जो मुझे कॉमनैलिटी लगी है ना, या जिस तरह मैंने 2 बार दिया और PCS PMS भी 1 बार क्लियर किया, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं क्वेश्चंस को डिवाइड करूंगा तो मैं सबसे पहले उसको रेशियो दूंगा, इसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज करूंगा, ठीक है। सबसे पहले इस पे आएगी स्ट्रेटजी। इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं, ये सिर्फ स्ट्रेटजी एक वर्ड है, उसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशंस हैं, आपकी स्किल्स हैं, आपके पेपर अटेम्प्ट टेक्निक्स हैं, ब्ला 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 ब्ला। इसका अगर आप क्वेश्चन कहेंगे तो वो है 50%। उसके बाद आपका स्टडी
या आपका जो हार्डवर्क है, या आपकी इंटेलिजेंस है, या एबीसी जो भी आप समझते हैं, कुछ बंदे बहुत मेहनती होते हैं, कुछ वैसे जीनियस होते हैं, इसका पोर्शन है 30%। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मेरी एनालिसिस है। और आखिर में आता है द लक पार्ट। ये इस चीज को, फार्मूले को आप ज़हन में बना के शुरू हो जाए, बिलीव यू मी कि आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। नॉट टू स्पीक ऑफ कि जी नहीं जी ये तो सारी 90% लक है, बड़ी मेहनत की फलाने ने, उसमें वो किया, नो डाउट लक फैक्टर है, बट लक आपको सिर्फ ये डिफाइन करेगा कि आइदर यू विल बिकम अ सीएसपी और नॉट। लक ये डिफाइन नहीं करेगा कि आप पीएसपी में आएंगे, आप किस उसमें वो करेंगे, वो सारी चीजें आपकी ये डिफाइन करेंगी और ये डिफाइन करेंगी आपने कितना पढ़ा, कितनी मेहनत की, कितने रातों को जागे, और ये करने के बावजूद अगर आपको ना पेपर करना आता है, ना आप हैंड राइटिंग में दो दी, ना आपने कुछ स्ट्रेटजी में, आई मीन कि जब आप इस पर जाएंगे तो बेसिकली कोई भी एग्जाम है, हम देखें बंदा कहता है सारे साल एग्जाम देते आए हैं, अभी हम नर्सरी से शुरू हुए थे तो ग्रेजुएशन कर ली, एग्जाम दे रहे हैं, फिर इसमें क्या एक डिफरेंट चीज है, ये भी तो एग्जाम ही होना चाहिए ना जिस तरह नॉर्मल एग्जाम है। तो वो जो मैंने एलिमिनेशन पहले बताया था ना, उस एलिमिनेशन की वजह से ये एक डिफरेंट एग्जाम हो जाता है। इसको मुकाबले का अंदर इस तरह कहते हैं कि इसमें सारे बंदे मुकाबले में हैं और दौड़ एक दूसरे को गिरा रहे हैं कि मैंने आगे जाना है, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेटजी जो है ना, इसके ऊपर भी फर्दर हमारा पूरा एक लेक्चर मैं उस पर किसी दिन उसको करूंगा आपको। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज, ये मेनली है पेपर अडप्टिंग टेक्निक्स है, हाउ टू इवन व्हेन यू आर अपना रीडिंग समथिंग, किस तरह उसको पढ़ना है, ये नहीं है कि सिर्फ तोतों की तरह रट्टा मार लेना जिस तरह हम नॉर्मली। आपने कभी देखा है माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हमारे इतने काबिल और जीनियस होते हैं, वो सारे सारा कुरान ज़बानी याद हो जाता है, लेकिन अगर हम कंटेम्पलेट करके इसको फोकस करके वो करें तो हमें 2 आयात का तर्जुमा भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो किस तरह पढ़ना है, रटा सिर्फ मारना है, सिर्फ किताबें सर मैंने 20 किताबें पढ़ ली हैं, या उन किताबों में से क्या चीज निकालनी है, हियर कम्स स्ट्रेटजीज, ठीक है। इसके ऊपर हम उस पर वो करेंगे, बट दिस इज द एंटायर सीएसएस। इस पे फिर आपकी आ जाती है कि कुछ लोग कहते हैं सर कितने घंटे पढ़ते हो, कितने लाइक मुझे बड़े फनी फनी क्वेश्चंस भी आते थे उसमें, जब बंदा हो जाता है तो फिर वो अक्सर लोग मिसगाइड करते हैं, तो पीपल यूज्ड टू आस्क मी सर आप क्या खाते थे, मैंने कहा यार भाई खाते डॉक्टर सारे खाते, मैंने तुमसे वो करनी है। पॉइंट ये है कि आप 10 घंटे पढ़े, आप 4 घंटे पढ़े, आप 16 घंटे पढ़े, आप 20 घंटे पढ़े, डजंट मैटर। आप रात को पढ़े, आप दिन को पढ़े, आप सुबह जल्दी उठते हैं या आप रात लेट सोते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और रिटेन कैसे करना है वो मैटर करता है। फॉर इंस्टेंस आपका क्या नाम है? वसीम। अब वसीम की इंटेलिजेंस मुमकिन है हो कि वसीम एक चीज 4 घंटे में कर लेता है, और आपका क्या नाम है? शाहसन। तो ये जो है ये मुमकिन है उसी चीज को करने के लिए 12 घंटे लगे, 16 घंटे लगाएगा। तो अब मैं क्या करूं कि वसीम और शाहसन जो है वो दोनों एक ही टाइम पे पढ़े, नहीं यार 16 घंटे जरूरी है। इसलिए इन चीजों को ना अपने जहनों से आपने आज से निकाल लेना है कि ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे पढ़े। हाँ मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो एक ही चीज को रिटेन कर लेते हैं फौरन, फोटोग्राफिक मेमोरी है पढ़ा। कुछ मेरी तरह है उनको बार बार पढ़ना पड़ता है, तो बार बार पढ़े, ठीक है। जेल में ये रखना कि जो हमारा कंपटीशन है वो पंजाब के, अब तो पंजाब से बाहर निकल गई ये गेम, अब तो इंटरनेशनल क्वालिफाइड लोगों के उन बच्चों के साथ है जो कि बड़ी बड़ी जो है ना अपनी उस पे पोजीशंस पे पढ़ के आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो उनके साथ हमारा कंपटीशन है, जब उसको जेल में लाएंगे तो फिर हमें लाइक अगर कोई 4 घंटे दौड़ता है और उसको मुकाबला करना है यूसेन बोल्ट के साथ, तो उसको 40 घंटे दौड़ना पड़ेगा सिर्फ उसके साथ मुकाबला करने के लिए। जितना तो बात की बात है, 400 घंटे लगाए उसके लिए शायद, ठीक है। तो इस चीज को आपने उस पर रखना है। अब इसके बाद मैं ये हमारा तकरीबन लास्ट पोर्शन होगा, उस पर फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ बुक्स और कुछ वो चीजें बता दूं जो आपने भी आज से या आगे फर्दर आपके उनमें से जब आपकी डिग्रीज होती हैं उनको पढ़ना शुरू कर देना है, कुछ उसको कर लेनी है। वो मैं यहाँ पे करने की बजाय एक मैसेज बना के फॉरवर्ड करूँ। इनिशियली अभी उस पर वो है, कुछ मैंने मूवीज के नाम लिखे हैं, कुछ मैंने बुक्स के लिखे हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ जिस स्टेज पे आप है ना, आप सबसे मेरी ये गुजारिश है, इसके लिए गुजारिश कह लें, रिक्वेस्ट कह लें, ऑर्डर कह लें, वो ये है कि न्यूज़पेपर जो है ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर
अभी आपको मैंने बता दिया है, उसमें मैं प्रेफरेबली काम करता हूँ, लेकिन एनी अदर भी हो सकती है जिसको जो पसंद है। लेकिन इसका आपको फायदा होगा ओवरऑल। इसको आप अपनी जिंदगी में आज से 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक मैंडेटरी कर लें, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई भी, आई सेड इट एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन अगेन। पिछली दफा मैंने बताया था कि मैं एक पूरी अखबार 2-2.5 घंटे पढ़ लेता था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता कि अंदर क्या लिखा हुआ है। इस स्टेज पे थे हम, और ये तक की बात बता रहा हूँ, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर में अगर ये सिचुएशन हो तो सोचे हमारी पिछली जो बैकग्राउंड है वो सारा उर्दू मीडियम का क्या होगा। आप लोग तो लाइक एवरीवन होपफुली दे अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे कैन राइट वेल, दे कैन फोकस ऑन इट। अभी मैं आपको लिखने पे या उस पे नहीं कर रहा, सिर्फ पढ़ने को कर रहा हूँ। अगर आप लिखते हैं तो वो इससे भी अच्छा है कि फॉर इंस्टेंस आप आज के दिन में 4 सफ़े पढ़ते हैं अखबार के, उन 4 सफ़ों में से सिर्फ एक पैराग्राफ खुद लिख लिया करें कि हमने आज पढ़ा जी बलोचिस्तान के हालात बड़े लाइक अनफॉर्चुनेटली सैड है, तो दुखी का इंसिडेंट हुआ अभी, तो दुखी का इंसिडेंट आपने पढ़ा अखबार में से, उसमें से आपको 4 पॉइंट मिले। आपने उन 4 पॉइंटों को ध्यान में रख लेना, अखबार बंद कर देनी है और उनको अपने लफ्जों में एक पैराग्राफ में लिख देना है, ठीक है। टुडे अ ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म हैपेंड इन दुकी, फुल स्टॉप। देयर आर सेवरल कैजुअलिटीज इन दैट अटैक। The horrendous attack on the civil population is condemned by all the political parties in Pakistan. We need to have a better strategy. मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको ऐसे कि देखिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप सबको समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कोई रॉकेट साइंस है इसमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब हम कभी जिंदगी में लिखा ही नहीं होता, हम कभी मैं आपको बोल रहा हूँ एक एप्लीकेशन लिखे मुझे, तो आप लोग सोचना शुरू हो जाएंगे यार क्या लिखूँ, 4 महीने लिखनी है, क्या करें इसमें, क्योंकि कभी लिखा ही नहीं हमने, कभी पढ़ा ही नहीं, ना अच्छा पढ़ा ना अच्छा लिखा, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 98% लोग ऐसे में फेल। सोचते हैं बंदे के सर हम तो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन था सारा इंग्लिश मीडियम में करके, लेकिन उसके बावजूद इंग्लिश में फेल हो गए, क्यों? क्योंकि कभी आपने सिर्फ पढ़ी है फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, कभी सेल्फ राइटिंग की है उसके ऊपर, कभी को 2-4 महीने खुद सोच के लिखी है कि अच्छा इसके अंदर ये चीज है, अच्छा ये इसने कहा था, अगर यही बात मैं कहूंगा तो मैं कैसे कहूंगा, फिर अपना उसके साथ कंपैरिजन करें। मैं जो अखबार का कहा था आपको, मैं ये पढ़ के इसको बंद करके रखता था, फिर खुद लिखता था, फिर उसको खोलता था, अच्छा मैंने ये लिखा है, इसने ये लिखा है, इसने कितना अच्छा लिखा है, मैंने कितना बुरा लिखा है, मैं इस तरह क्यों नहीं लिख सकता, ठीक है। तो थ्रू दिस वे यू विल स्टार्ट राइटिंग। ये अगर राइटिंग अगर आप अभी चले स्टेज पे आपको हम मोनी पटन नहीं करते, अगर ये वीक में एक बार खुद लिखा करें, हफ्ते में किसी दिन, हफ्ते वाले दिन जब जिस दिन आपको रिलैक्स हो, माइंड को फ्रेश करना हो, आप पढ़ते रहे बात रोज पढ़नी है, पढ़ने में कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। लिखने पे आप हफ्ते में 1 दिन लिखा करें, बस अपने मर्जी से कोई भी उसमें से लिखा, फिर एक दूसरे को चेक कराया, यार ये देखो यार ये मैंने 4 दिन पहले लिखी है, तुम्हें कैसी लगती है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रेटजी एंड एंटायर सीएसएस। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर प्रॉपर ग्रिप अपनी कर ली और इसके ऊपर अपना एक्सपर्टीज कर ली, बाकी सिर्फ नरेशन ऑफ फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, उसी तरह ही 10 से 12 सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह बाकी आप अभी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा है और या कोई आईआर पढ़ रहा है, तो वो जो है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। हमने जो मेन अपनी करनी है वो इसको मजबूत रखनी है, इसको मेहनत करनी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कर सके। सो आई रेस्ट माई केस हेयर, इट्स ऑलरेडी 50 मिनट्स। सो अभी आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि क्या क्या इसमें अभी आपको मजीद, तो मैं शायद नहीं बोल सकता, मुझे लगता है कि आपके जहनों में था। एनीवन, एवरीबॉडी। सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं? जैसे बहुत सारे लोग जी लॉ कर लें तो वो बेटर होता है। अच्छा हाँ ठीक है, आप चाह रहे हैं कि इनको हम बताएं कि इसके लिए कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि फेवरेबल हो गए आगे कंपटीशन के लिए, ठीक हो गया। उस पर अगर तो हम बात करेंगे स्पेसिफिकली, जिसने देखिए ये थोड़ी सी गैम्बल है, इट्स अ गैम्बल, फ्रैंकली स्पीकिंग। गैम्बल इसलिए, मैं हालांकि अच्छा वर्ड नहीं है, बट अगर आपका ये गैम्बल लग गया तो यू आर एट द टॉप ऑफ देम, ठीक है तो ये सैड फैक्ट, लेकिन ये फैक्ट है चूंकि पाकिस्तान के केस में कि एक बंदे ने इतनी मेहनत की, वो इंजीनियर भी बना, डॉक्टर भी बना, मेहनत कर कर आया, आपने एक एग्जाम दिया, आप सब उसके ऊपर आके बैठ गए, ठीक है। वो डीएचओ में एक अस्पताल चला रहा होगा और आप रोजिला चला रहे होगे, वो एक इमारत कर रहा होगा और आप पूरे डिपार्टमेंट को हेड कर रहे होंगे, इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी बैठे होंगे। बट इस तरह सर ने कहा सिलेक्शन ऑफ वो, उस पर जो मैं समझता हूं कि आपको उस पर करना चाहिए, सोशल साइंसेस में आप अपना मास्टर्स को परस्यू करें,
सोशल साइंसेस एंड आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज उसे कह सकते हैं आप, ठीक है। इस पे जो मैंने पढ़े हैं मैं आपको अपने पहले बताऊंगा। मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया, बैचलर्स। इसके साथ मेरा एक था लॉ ऑप्शनल और एक थी इकोनॉमिक्स। क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा कॉम्बिनेशन ये वाला अवेलेबल था। अदरवाइज सोशल साइंसेस के अंदर जितने सब्जेक्ट्स हैं उस पर आप लिखेंगे तो हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, और आप आते जाएं पाकिस्तान स्टडीज भी अब तो अलग से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर, जियोग्राफी, मतलब लाइक नेम द सब्जेक्ट। सोशल साइंस के जब आप नाम लेंगे ना तो उसमें आपको बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं। सिर्फ प्योर साइंसेस को, मेडिसिन के साइंसेस को और फिजिक्स केमिस्ट्री और उसको निकाल के बाकी कोई भी उस पे आएगा आपको। किसी को लगता है सर मुझे ना नॉवल बड़े पसंद है, मैं नॉवल बड़े मजा देते हैं मुझे, तो उसको चाहिए कि इंग्लिश लिटरेचर रख लें। ये आपकी सीढ़ी होगी फॉर योर फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। इस सीढ़ी की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी आपको डिफाइन करना है कि अच्छा सर मैं अभी सर आप इंटर में हैं उस पे है तो अभी से उसी के मुताबिक एक एक दो दो किताबें पढ़नी शुरू करें। आपको खुद पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है या नहीं है। जिस तरह मुझे अब हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हालांकि मैंने हिस्ट्री मेरा मेजर नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने हिस्ट्री के ऊपर वो 50 किताबें पढ़ी, ठीक है। जो मैसेज अच्छी लगती थी, मैंने 10 बंदों की बायोग्राफी पढ़ी, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे लगा कि यार मुझे पहले उनकी लाइफ पढ़नी चाहिए। फिर मैंने जिन्ना साहब की पढ़ी, विंस्टन चर्चिल की पढ़ी, इवन हिटलर की पढ़ी, जो मतलब के लोग बड़े गुजरे तो इन लोगों ने क्या काम किया, नेपोलियन की पढ़ी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस उसके अंदर इंटरेस्ट ज्यादा है। बाकी जितने सोशल साइंसेस के और ह्यूमैनिटीज के ग्रुप हैं सब अब तो जेंडर स्टडीज भी पढ़ाते हैं, जेंडर स्टडीज है, इवन कोई लैंग्वेज है, पंजाबी है, पश्तो है, बलोची है, उर्दू लिटरेचर है, डजंट मैटर। आप इसको करने के साथ साथ जो पहले वाली आपको टेक्निक बताई है, अपनी अंग्रेजी को सीधे करते जाना साथ साथ में, और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते जाना है। आपकी इसके बाद जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है उनकी जो अगली स्टेज आने वाली है उस स्टेज में आपने वो सारी मेहनत कर लेनी है कि जो लोगों को जाके तब पता चलता है जब वो बैचलर्स कर लेते हैं, मास्टर्स, फिर पता चलता है कि अच्छा यार मैंने तो सीसेस करना था, अब क्या करना है। अब जी वो पहले तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है और मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, अब मुझे ये पढ़ने पड़ेंगे। तो बाद में जाके अगर यही पढ़ने हैं तो फिर हम पहले इकोनॉमिक को पढ़े, ठीक है। हमने यही सिलेक्ट करना है, हमने जो ऑप्शन मैंने बताया वो नहीं वैसे हैं। और इनमें से आपका नेचुरली जो आपकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है ना, पाकिस्तान अफेयर्स है, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स है, इस्लामियात है, वो भी आप किसी से निकल जाएंगे सबके सामने। तो जो इसमें सोशल साइंसेस की जिस तरह आप सर ने पूछा तो आप खुद अपना उसमें जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, सोचें। बाकी चॉइस मैंने आपको दे दी है, इसमें जितनी है इनको लिस्ट निकाल दीजिएगा, ठीक है, सो दैट कि दे हैव ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शंस। जो जो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी है, कोई लॉ पढ़ ले किताब, को किसी को पढ़ अच्छा उसको लगता है यार ये मुझे अच्छी लग रही है तो उसी को लेते हैं, ठीक है। बाकी दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। जब सीएसएस जो इसके लिए एकेडमी ज्वाइन करना लाजमी होता है या अपना खुद भी करना? बिल्कुल नहीं होता, मैंने किसी एकेडमी में ये बड़ा बच्चों में या वैसे ओवरऑल हमारे माशरे में कि लिए उस एकेडमी में जाए, उधर जाए, उसके पास जाए, यानी कोई कंपल्सरी नहीं? कोई कंपल्सरी नहीं है। मैं आपको फ्रैंकली अपनी मिसाल बताता हूँ, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। किसी भी एक एकेडमी में मैं अगर एक दिन भी गया हूँ तैयारी के लिए तो जो है ना वो मतलब मैं झूठ तो क्यों बोलूँगा आपके साथ स्टेज पे अगर आके। तो अब एकेडमीज का बहुत रुझान हो चुका है, इसलिए हो चुका है कि लोगों को गाइडेंस मिलती नहीं है, लोगों को बताने वाला कोई नहीं है ना कि करना क्या है, ठीक है। होता क्या है, अभी ये बेचारे इतने बल्क में कैटेगरी आते हैं, होता हुआ भी ये रहा है कि अब जो थे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या जो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, जो कि पहले अपनी अपनी फील्ड पे चले जाते थे, बोला अब चूंकि वहां पे इतनी सैचुरेशन हो गई है कि वो लोग भी इधर आते हैं। तो इनको तो पहले थोड़ा बहुत आइडिया होता था कि क्या करना है। जब ये डॉट इतनी आ जाती है ना तो इनको फिर गाइडेंस के लिए वो कहते हैं यार अकेडमी चलते हैं। फिर वो जो हमारे वैसे एक ओवरऑल टेंडेंसी है कि पेड़ चाल वाली कि यार फलाना जा रहा है तो कभी वो कुछ ज्यादा सीख लेगा, तो अकेडमीज का जरूरत अभी स्टेज पे नाम डिजाइन में बनाना है। जब नजदीक आएंगे फिर देखेंगे चलिए यार अकेडमी में क्या चल रहा है, कोई दोस्त यार आपका बना ले, उसको कहे तुम क्या पढ़ते हो, वो भी यही पढ़ रहा होगा जो आप ऐसे पढ़ रहे हो, ठीक है। किताबें तो वही है, सिलेबस भी वही है, ठीक है। सिर्फ वो डायरेक्शंस आपको देते हैं, वो भी अभी चूंकि बहुत ज्यादा मोनेटाइज हो गई हैं चीजें, कमर्शियल कर दी हैं, दे आर जस्ट मिंटिंग मनी एंड दे आर लाइक रादर मैं कहूँगा कि इनके डर के साथ खेल रहे हैं। जी हाँ,
सर कुछ लोग आर्मी की तरफ सीएसएस कर लेते हैं, ओके सर? किसको सॉरी? आर्मी की तरफ सर। आर्मी के थ्रू। जी सर। आर्मी के थ्रू जो आता है वो आर्मी का हमारे पास एक कोटा है जो कि वो सीएसएस नहीं करते, उसका ये जो है ना, अगर 220 आपको किया ना, मैं आपको बता देता हूँ, इस साल अगर 220 सीटें आई हैं सीएसएस की, तो इसका 10% कोटा उन्होंने फिक्स किया हुआ है फॉर आर्म्ड सर्विसेज के लिए। पाकिस्तान में जो कमीशन अफसर होते हैं ना, नेवी के, पाक आर्मी के और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एयरफोर्स के इन 220 का कोटा बनेगा 12, 10% अगर निकाल लेता हूं, तो जो 12 ऑफिसर्स आएंगे वो इन तीनों सर्विसेज में से आएंगे, उनका कोई एग्जाम नहीं होता और वो कोटे के उस पे आते हैं और वो आगे इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू के बाद उनको जो 3 ग्रुप है ना ऊपर वाले, डीएमजी, पीएस, पीएसपी और एफएसपी, इन तीनों के अंदर में से किसी को एक अलॉट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई आर्मी में जाना चाहता है, उसके बाद वो वाला कमीशन अफसर बनना चाहता है और उस कमीशन अफसर बनने के बाद फिर सीएसएस की तरफ आना चाहता है, तो उसके लिए 10% कोटा है। लेकिन ये देखें कि इस कोटे के अंदर बहुत ज्यादा ना डिबेट है कि इसके अंदर हमें, मुझे नहीं आइडिया क्योंकि मैं आर्मी से नहीं आया, तो समटाइम्स लोग कहते हैं कि जी जर्नैल के बेटे हैं जिनकी सिफारिश होती है, वो है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अंदर का क्या सिस्टम है आर्मी के। लेकिन अदरवाइज वो ये क्लेम करते हैं कि जी हमारा एक इंटरनल एग्जाम होता है, हम खुद ही उसका वो करते हैं, उनमें से बंदों को भिजवाते हैं, वो सिर्फ इंटरव्यू देते हैं आके एफपीएससी में, और फिर इंटरव्यू बेस के ऊपर 10 से 12 अफसर हर साल ऐड हो जाते हैं। बाकी 220 जो है वो तमाम सिविल हो गए हम, और जो 10% कोटा होगा वो आर्मी का होगा। ठीक है जी। उसके बाद Sir, I have a question about English, sir. about English. About English subject, sir. Yes. Sir, it is also my big wish to become an orator, to speak English fluently. Sir, I have been reading English for some months, but I have not observed some satisfied improvement in English. So what is the best way to improve my English level? Because the most first preferring SSS prefer is English. So the best. So you want to improve your speaking English or writing of English or listening? To become an orator with English writing, with essay writing. This writing. You want to become an orator? Yes. Okay. Point is के for instance के English पे हमारी first language नहीं है, right? ये तो क्वेश्चन में और भी है। Yes. Okay, बैठ। Since कोई भी चीज जो है ना, तो चूंकि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो उसको हम एक ही वे है बस, जस्ट वन, और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस रीडिंग की करें, प्रैक्टिस राइटिंग की करें, प्रैक्टिस स्पीकिंग की करें। मैं आपको अपनी मिसाल से ही वो वाज़ेह करता हूँ कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, जिस तरह आपने कहा, ये नेचुरल, दिस इज नेचुरल, एंड डोंट फील शाय अबाउट दैट कि मैं 4 लफ्ज़ अंग्रेजी के नहीं बोल सकता या वो नहीं होता। दिस इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली, दिस इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप बहुत अच्छी पश्तो बोलते हैं, ठीक है, तो शायद आपको जो लाइक एक कोरा है वो इस पेज पे करेगी है, मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि वो भी आपकी तरह उतना इग्नोरेंट है जितने हम उसकी तरह इग्नोरेंट है, क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज पश्तो थी या बलोची थी या पंजाबी थी। हाँ, उसको ओवरकम कैसे करना है, टाइम एंड अगेन रिपीटेडली, जिस चीज के ऊपर जो ज्यादा फंसती है उसको ज्यादा वो करना है। जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो मुझे भी ये वाला फेज आया, स्पेशली अबाउट स्पीकिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने जितने अच्छे थे ना ऑरेटर्स, ओबामा साहब तब 2008-14 की इनकी थी, तो मैंने इनकी स्पीचेस सारी डाउनलोड कर ली। फिर यूट्यूब पे जाकर जो अच्छा मुझे लगता था ना, जिस तरह मुझे CNN का क्या वो है BBC का 1-2 अच्छा एंकर था, उसका मैंने डाउनलोड किए, और जो उसके अंदर नया कालम आता उसको मैं पूरी सुनता था। कार के अंदर जा रहा हूँ, घर के अंदर जा रहा हूँ, मोबाइल में किया हुआ है, उसको लगाया हुआ है, वही सुनी जा रहा हूँ। जो आप सुनते हैं वही आपके जहन में फीड होते जाता है। फिर जब आपने बोलना है तो रादर देन कि हम वो करें, आपको परंतु कोई एक दोस्त टोक ले, यार तुमने, मैंने जब भी तुम्हारे साथ बोलना है अंग्रेजी बोलती है। लाइक हम सेकंड ईयर में थे तो वन ऑफ माय इंग्लिश टीचर्स ही हैज बैंड स्पीकिंग उर्दू इन आवर क्लास। उसने कहा जो भी उर्दू बैकग्राउंड से बोलेगा उसको 5 रुपए या 10 रुपए जुर्माना होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो कैन यू बिलीव कि हमने पूरा साल उस क्लास में उर्दू बोली नहीं, क्योंकि उर्दू अलाउ नहीं थी। जो उर्दू बोलता था बोलता क्वेश्चन भी करना है ना, ये बॉल पेन मांगना है, कहना है बॉल पेन प्लीज, कहता अंग्रेजी में पूछो, नहीं चुप करके बैठे रहो। तो पॉइंट ये है कि जो चीज आपको ज्यादा से ज्यादा इरिटेट करती है, जब फंसती है, उसकी उतनी प्रैक्टिस करनी है। आप वो स्पीकिंग की कर ले, वो राइटिंग की कर ले, वो रीडिंग की कर ले, प्रैक्टिस इज द की। ठीक है, और डोंट फील शाय अबाउट दैट। इतने बंदे बैठे हैं माशाल्लाह, यू आस्क द क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड आई एम इम्प्रेस्ड
दैट रादर देन कि आप कोई उसमें वो कर देंगे सर मुझे तो मैं उर्दू में पूछूं अंग्रेजी में पूछूं, तो जिसमें आपका दिल करता है आप बोले, गलत गलत ही बोलेंगे ना। जो गलती आप यहाँ पे आज करेंगे कम से कम वो कल को पेपर में इंटरव्यू के सामने तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर क्या मेडिकल के बाद भी इसमें अपेयर हो सकते हैं, और मेडिकल के बाद हमें किस तरह मतलब इसको ज्वाइन करें और उसका क्राइटेरिया क्या होता है? बिल्कुल, मेडिकल के बाद ऐसे जो मैंने इसको बताया, इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो 14 years ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया सबके लिए वही है। इसमें आप 14 years में आप कोई बीए कर लेगा, कोई बीसीएस कर लेगा, कोई बीएससी कर लेगा, कोई एमबीबीएस कर लेगा, कोई इंजीनियरिंग कर लेगा, कोई 5 से डिग्री लेके लॉ कर लेगा, ठीक है। ये आपकी चॉइसेस है। कोई एमए इंग्लिश कर लेगा, कोई बीए फलाना कर लेगा, वो प्राइवेट बीए कर लेगा मेरी तरह बिल्कुल, ठीक है। तो सबके लिए क्राइटेरिया ये है कि 14 साल आपने तालीम पूरी करनी है, उसके बाद आप पहले दिन बैठ जाए। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मेरा बैचमेट था फर्स्ट ईयर में अब्दुल्ला, करंटली सर्विंग एज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, एडीसीआर है इस्लामाबाद में। अब्दुल्ला ज्वाइंड आफ्टर द एफएससी, ही ज्वाइंड एमबीबीएस। एमबीबीएस में 1 साल उसने पढ़ा, उसको लगा कि यार ये बहुत लंबा काम है, मेरे से नहीं होगा। वेरी जीनियस, वेरी टैलेंटेड पिंडी का। अब्दुल्ला ने एमबीबीएस को स्किप किया, साथ में प्राइवेट बीए किया। बीए के साथ ही उसने पेपर दिए सीएसएस के, पहले अटेम्प्ट में सीएसएस में डीएमजी आ गया। एंड व्हेन ही जॉइंड सर्विस ही वाज द मोस्ट यंगेस्ट ऑफिसर। 22 साल की 21 साल की उम्र में वो सीएसपी भी बन गया, ठीक है। तो डजंट मैटर अगर आप उसको, हाँ ये वाली जो अप्रोच है दिस इज गुड एज वेल। उसकी रीजन ये है कि हमारे जिस तरह जॉब्स का या वो वाला है, जो अगला क्वेश्चन आपका इसके साथ मैं लिंक करूँ वो ये होगा कि सर अगर हम ये आपने जो सारा बोला मैं हम सोशल साइंस रखते हैं, कल को हमें नौकरी नहीं मिलती, फॉर इंस्टेंस कंपटीशन है, लाख नहीं काम करती नहीं मिलती, फिर क्या करेंगे? फॉल बैक ऑप्शन क्या है? फॉल बैक ऑप्शन इसके पास तो ये है कि चलो ये क्लिनिक खोल लेगा, डॉक्टर बन जाएगा। इसके पास ऑप्शन ये है कि ये कहेगा मैं किसी प्राइवेट फर्म में कर लूंगा इंजीनियरिंग। ये बीसीएस वाले के पास ये है कि आजकल कंप्यूटर का दौर है, ए बेस्ड चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेगा। ये किधर जाएगा? चलो ये प्रैक्टिस कर लेगा लॉ की, तो वकील बन जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि क्या हम वन पेपर की तरफ जाएं, हम टीचिंग की तरफ जाएं, हम किसी और सब्सिडरी बाकी हैं जो उसके बाद फिर, क्योंकि इसके बाद फिर बहुत बड़ा हंच आता है दरम्यान में, फिर और फील्ड्स ये वाली आती है जो कवर करती हैं। कोई इकोनॉमी वाला, एमबीए वाला, एमबीए भी इसमें शायद मैंने लिखा, एमबीए भी हो सकता है, वो कर देगा। सो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हम पहले अपने इसको सिक्योर करेंगे मेडिकल या इंजीनियरिंग में, ताकि खुदा ना खास्ता ये हमारे से नहीं होता तो हम कल को डॉक्टर तो होंगे। लेकिन मैं ये रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि जिंदगी एक ही है, इसमें रिस्क लें, मेहनत करें। और हो ही नहीं सकता कि अगर आपने इसमें इतनी मेहनत करके हो जाना है तो फिर यार इसमें मेहनत कर लो, ठीक है ना। मैं आपको मिसाल दूं इसकी सीधी, ये आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, उधर पहुंचना है। सबसे सीधा रास्ता क्या है? सबसे सीधा और शॉर्ट यही है ना। थोड़ा सा मैं ऐसे भी जाऊंगा ना, लंबा बढ़ जाएगा। अब मैं पहले इधर जाता हूं, फिर इधर जाता हूं, फिर इधर आता हूं, फिर वहां जाता हूं, फिर घूमता हूं, ये करके फिर इधर पहुंचता हूं। टाइम भी ज्यादा लगा, एनर्जी भी ज्यादा हुई, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ी। पागलों की तरह पहले हर किसी को टकरे भी मारी, पहुंचना तो फिर मैं उधर ही था। ये उनके लिए जो आज से आपने अपना ज़हन बनाना है। आज से मुमकिन है कि आप में से सिर्फ 10 लोग उठेंगे, नहीं यार जो मुझे समझ आई है ना, ये इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन जो 10 उठेंगे वो ये सोच उठेंगे कि नहीं यार मेरा सीधा यही है, बिल्कुल सिरात मुस्तकीम, राइट डायरेक्शन, इधर ही जाना है। और ये मैं आपको यकीन के साथ कहूँ कि बिलीव इन अल्लाह एंड बिलीव इन योर एबिलिटीज एंड योर टीचर्स। अगर आप उसमें वो पढ़ गए तो ये ना भी हुआ ना। हमारे एक दफा हम बड़े उसके पास जाते थे तो वन ऑफ आवर सीनियर ऑफिसर ही वाज आल्सो इन पुलिस। तो मुझे याद है कि हमने बाबा जी रहते थे, तो हम उनके घर से उठ के आए, वो हमारे पढ़ाते थे गवर्नमेंट कॉलेज में। तो हम ऐसे उनके पास गपशप के लिए जाते थे कि ना मिलेगी नॉलेज मिलेगी। तो एक बार हम बैठे हुए थे तो वहाँ पे एक इसी तरह मेरी तरफ यूनिफॉर्म में अफसर अभी सर्व कर रहे हैं।
तो हम बड़े इंप्रेस हुए उनको देख के कि यार वाह PSP अफसर है ये। तो उन्होंने वहाँ बैठे हुए हमें कहा कि बेटा ये जो आपको बता रहे हैं ना, ये पूरा समंदर है, इस समंदर में से तुमने एक बाउल निकालना और तुम्हारा CSS हो जाना है। कभी भी इनके पास जब आके बैठो तो ये ना सोचना कि मैं किसी CSS के लिए आया हूँ, सोचना कि मैं इल्म के लिए आया हूँ। उस इल्म में से एक गड़ा निकालोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। सो पॉइंट इज कि जो आपने इसकी तैयारी करनी है, आपने कभी नहीं सोचना कि मेरी यही होना है। हाँ, एम यही रखना है, बनना भी यही है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता गिरोगे भी तो किसी उसके आसपास गिरोगे आगे। चलो ग्रेड 17 में CSS में नहीं होगा तो PCS में आ जाएंगे, PCS में तो असिस्टेंट डायरेक्टर नैब हो जाएंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर IB हो जाएंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर FI हो जाएंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 में बहुत आगे फर्दर उस पे है, इलेक्शन कमीशन की सीटें हैं, फिर है टीचर हो जाएगा, आप किसी को बता सकेंगे। ठीक है, मेरे अपने बैच में कई लेक्चरर उस पे हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने इसको वो किया था, लेकिन बस उनकी कोई बाई चॉइस के कहीं उसके बाद ऐसे उन्होंने कहा कि चलो जी मैं इसको परसू करता हूँ, और वो हमसे ज्यादा खुश हैं। मैं तो घर से 1000 किलोमीटर दूर हूँ, वो अपने घर के पास है, शाम को रोज घर चले जाते हैं। आई हैव टू अप्लाई फॉर द लीव फ्रॉम द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू CM। ठीक है, सो जितना वो करना है रिवार्ड भी उतना है, रडार भी उतना है। ऑडिट ये सर जो है ना ओवरऑल आपकी जी जी आप बलूचिस्तान, जैसे आप पंजाब से, मैं पंजाब से, और हाँ हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, पूरा पाकिस्तान है। एक जो जहन में होता है कि जी क्या CSE एग्ज़ाम में कोई नकल, कोई चीटिंग या कोई सिफारिश की चीज़ है। दूसरा ये है कि क्या जो बलूचिस्तान से जितने हमारे बच्चे हैं, ये बड़ा एक हाइप होता है कि जी सिर्फ पंजाब का बच्चा कर सकता है, या सिंध का कर सकता है, या इस्लामाबाद कर सकता है। इन बच्चों के लिए एक जो एक सिंगल वर्ड मोटिवेशन, तो क्या चीज़ है कि जी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो यहाँ के बच्चे भी कर सकते हैं, और आपके साथ ये बहुत सारे बच्चे बलूचिस्तान से भी होंगे, ये इनके जहन के अंदर ही और आप पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे भी क्वेश्चन है। इसका मैं आपको ना मिसाल अपने बैच के साथ देता हूँ। हमारे बैच में जो सिर्फ बलूचिस्तान की सीटें आई थी ना, 2-3 क्वेश्चन आपके क्लब है, वो थी 24 सीटें। इन 220 में से 24 सीटें बलूचिस्तान की थी। आपको अगर सर पंजाब में 50% तो 110 सीट पंजाब की, 110 सीटें पंजाब की, इन 220 में से, और 24 सीटें पंजाब बलूचिस्तान की थी। आपको पता है कि बलूचिस्तान हमारी तरफ पंजाब से 260 लोग पास हुए थे। उन 260 में से भी 140 को सीट नहीं मिली और 110 को मिली, 150 को नहीं मिली, 110 को मिली, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा था, लोग पास इतने हो गए। और बलूचिस्तान की 24 सीटों में से पास ही 8 हुए थे, बाकी सीटें जो थी वो 16 जाया हुई। तो यार हमने तो सिर्फ क्लियर करना है। आप यकीन करें, मैं अक्सर बलूचिस्तान वालों को कहता हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ रिटर्न क्लियर करना है। आपको पता है मैं पहले OMG में क्यों आया? मैं OMG में आया, मेरी पाकिस्तान में पोजीशन थी 137 उस साल 2014 में, और मेरे साथ जो बलूचिस्तान का 217 नंबर पे था ना, वो पुलिस में आया था, जो मेरे से इतना मेरिट उसमें था। तो अगर आप कंपैरिजन उस पर करोगे ना, तो पंजाब के उसको एज जरूर है, क्योंकि वहाँ अदारे उस तरीके से हैं, या मतलब उनकी ग्रूमिंग हो रही है। बट फ्रेंकली स्पीकिंग आपका फिर मुकाबला उनके साथ नहीं, आपका मुकाबला आपके साथ ही, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चीटिंग का जहां तक कहा, सिफारिश का बिल्कुल नहीं। मैं अपनी फैमिली में पहला CSP हूँ, और पहले CSP होने के बावजूद टॉप पे भी हूँ। हालांकि होना तो मुझे ये चाहिए था कि मैं कहीं ऐसे सिफारिश से उसमें आ जाता और रगड़ा उड़ा लगा के कहता, और मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मेरे बड़े भाई PCS हैं, PMS अफसर है पंजाब में, मेरिट कोई खानदान में पहले ना चाचा, ना मामा, ना ताया, ना को आर्मी में, ना को पॉलिटिशियन, पहली जनरेशन आई है। तो अगर हम ये देखा कि ये आ गए हैं, अभी हमारे जो रिसेंटली पेपर्स हुए हैं, जो हमने भी कांस्टेबल भर्ती किया, तो मेरी एक कंडीशन थी, मैंने कहा यार मैं आगे सब कुछ मान लूंगा, मैं छुट्टी देने में सिफारिश मान लूंगा, मैं किसी को लाइव ड्यूटी में सिफारिश मान लूंगा, लेकिन मैं भर्ती में सिफारिश नहीं मानूंगा। उसकी वजह यह है कि जो भर्ती है ना, जो आपकी रिक्रूटमेंट है, ये अगले आपके 30-40 साल आप उसका हिसाब देंगे कि ये डिजर्विंग था और इसने मेहनत की थी, और दूसरे बंदे ने, और यही हमारे साथ हुआ। अगर खुदा ना खास्ता ये मेरिट ना होता तो मैं भी आज कोई लांगो ढूंढ रहा होता, कोई बुट्टी ढूंढ रहा होता, कोई फलाना ढूंढ रहा होता कि यार कुछ उसके फलाने होंगे तो वो कर लेंगे, और वो उनकी पैदावार आपके सामने है। CSS में आपको पैदावार नहीं नजर आएगी, वो आपको मिलेंगे कई महकमों में, ठीक है, सेहत में आपको मिल जाएगी इधर उधर लेफ्ट राइट, किसी ने कोई जुगाड़ प्रोग्राम, एजुकेशन में अनफॉर्चुनेटली चल रहा है, ठीक है, इसमें प्योर मेरिट है। रिटर्न तक तो आपके हमें पता ही नहीं होता कि कौन से बच्चे का पेपर कौन चेक कर रहा है, फेक नंबर्स होते हैं उसके ऊपर,
नंबरिंग जिस तरह हमने भी किया उसमें प्रोसीजर में ला रहे हैं। हमें नहीं पता वो अदील का कर रहा है, वो सलीम का कर रहा है, वो जाफर का कर रहा है, वो शजील का कर रहा है, कोई पता नहीं। आप लोग पेपर दे के आ जाते हैं, उनके ऊपर नंबरिंग हो जाती है, लेने वाले हो रहे हैं, चेकिंग वाले हो रहे हैं, रिजल्ट शेयर करने वाले हो रहे हैं, इंटरव्यू वाले हो रहे हैं। अगर वो बहुत मार मारेगा तो इंटरव्यू तक थोड़ा सा सुना है मैंने, वो भी सुना है मुझे। वन ऑफ माई कलीग्स सेड कि आप कहलवा रहे हो, मैंने कहा नहीं, पूरी जिंदगी 30-35 साल सर्विस में मैं यही कहता रहूँगा कि मैं मेरिट पे लिखूँ, मैंने किसी को कहलवा के रखूँ, हालांकि मेरिट पे भी आप हो सकते थे। ठीक है, तो ये अभी तक शुक्र है कि ये 2-3 एग्जाम है, ये भी शफाफ है, इसलिए रिकमेंडेड भी यही है। आपसे पहले ही कर सकते जी। सर मेरिट पर आने के बावजूद फिर जब वो पास कर लेते हैं एसएससी तो वो वही खदमात सर अंजाम दे देते हैं जिसका वो जज्बा होता है, हाँ। या उसमें कोई चेंज आ जाता है जिसको? बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आप लोग टीवीओ में उसमें भी देखते हैं कि देखिए जी ये तो पुलिस और ये आलाकार बनी हुई है सियासतदानों के, ऐसे ही है ना, कोई जी यहाँ तो रूल कोई और कर रहा है, फलान हो रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें बेटा दिन में ना मैं तो इसको इस तरह डिफाइन करता हूँ और अपने स्पिरिट को भी इस तरह मोटिवेट रखता हूँ कि दिन में मेरे पास अगर 90 काम आते हैं, 90 मैंने काम करने हैं, उस 80 वो काम है जो मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से जो जिस तरह चाहूँ उस तरह करूँ। उस पर मैं डे टू डे इंसाफ करूँ, किसी अपने कांस्टेबल की वेलफेयर करूँ, कोई यतीम बच्ची आई है उसको कैसे इंसाफ, किसी के साथ रेप हुआ है अल्लाह ना करे, किसी का कत्ल हुआ है, उस मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है। ये आपको मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ पुलिस की, इस तरह बाकी ग्रुप्स भी हैं। हाँ 10% मुमकिन वो एक ओहदे पे अगर बैठा है, मिनिस्टर है या मतलब एमपीए है या कोई भी उसमें है, तो वो हमारी आवाम की वोट से आया है और वो गवर्नमेंट के हैं और हम लोग क्या हैं, स्टेट के सर्वेंट हैं। वी आर सर्वेंट ऑफ द स्टेट। और स्टेट जो है वो उसको रन करने के लिए एक हुकूमत बनती है और हुकूमत बैठ के पॉलिसीज बनाती है, हम उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कभी कभी आपको उनकी बुक करनी पड़ती है बात, उसके बावजूद आपके पास इतनी स्पेस है, आप यकीन करो कि रोज 2 बंदे को भी इंसाफ दे दो ना, तो उसको मल्टीप्लाई करो आप 365 दिनों के साथ, 2 मिनिमम क्या मिनिमम 265 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये 365 के साथ तो ये बनता है 700 कुछ। उस 700 कुछ को मल्टीप्लाई करो 35 साल के साथ, तो जब हिसाब होगा ना हमारा, तो वो ये होगा कि एक दिन का अदल दिखा दो, इतनी सी बात। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू सर्व। हाँ ये स्पिरिट आपका कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी कोई मतलब आपको वो करेगा, वो अभी आपकी स्टेज की नहीं है बातें। सर ये 10% भी अगर बंदा कोशिश कर ले तो हो सकता है इसकी कमी आ सकती है इसमें भी आ सकती है, बिल्कुल आती है, क्यों नहीं आती। ये भी वो चीजें हैं जो मतलब मैं वैसे आपको कभी कभी ये 2% होता है, कभी कभी होता ही नहीं है। कभी कभी आपको इतने अच्छे लोग मिलते हैं क्योंकि हमने जो हमारे ऊपर हैं, जो हमारे नीचे हैं, जो हम खुद हैं, हम इस सोसाइटी की पैदावार है ना, हम उन्हें को मार्क्स से मुआए नहीं है। ठीक है, अगर जज है या ब्यूरोक्रेट है या पुलिस अफसर है या टीचर्स हैं या आर्मी अफसर है, वो कहाँ से हैं? इसी मुआशरे से हैं। तो इसी मुआशरे में हर तरह के लोग हैं। ठीक है, हमें पॉजिटिव रहना है, हम अपना रिस्पॉन्सिबल है, आप अपना रिस्पॉन्सिबल हो, नॉट टू स्पीक ऑफ एनीबॉडी एल्स। ठीक है, पुट योर बेस्ट। यस मेरा क्वेश्चन इंग्लिश के बारे में, और ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी टीचर्स अपने और काफ़ी मेंटरों से पहले की हुई, ऐसा का जवाब सेम आता है। दरअसल आपने जिस तरह कहा कि पेपर रीडिंग वगैरह, बुक्स रीडिंग, बहुत सारे बंदे कहते हैं कि यही इंग्लिश का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, स्पीकिंग के लिए आप इंग्लिश को सुनो, बोलो, ये सॉल्यूशन है। लेकिन उसमें फिर मुझे जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आता है कि हम रीडिंग कर रहे होते हैं, कोई चीज़ कोई नावल हम रीड कर रहे होते हैं, अभी आगे बीच में इस तरह का डिफिकल्ट वर्ड आ गया, अभी फिर हम उसके लिए जाएंगे, डिक्शनरी खोलेंगे, फिर ये वर्ड ढूंढेंगे, फिर ढूंढते ढूंढते जब वर्ड मिल गया, उसका मीनिंग मिल गया, फिर उसको कॉन्टेक्स्ट में फिट करेंगे, उसके बाद फिर पता नहीं हम कहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। जो स्टोरी जो आ रही होती है ना, वो पूरी डिस्टर्ब हो रही थी। इस तरह जिस तरह मूवीज वगैरह देख रहे हैं इंग्लिश सीखने के पर्पज से, फिर उसमें आप एक्शन भी ज़्यादा होते हैं, इस तरह के VFX इस्तेमाल होते हैं, इस तरह के एक्शन सीन इस्तेमाल होते हैं, उसमें देखते देखते अचानक इस तरह मुश्किल वर्ड होता है सुनने में। ठीक है ना, तो फिर हम उसको सर्च करने जाते, दिल ही नहीं चाह रहा था कि हम जाए सर्च करने के लिए, बन ही नहीं रहा है कि हम जाए सर्च करें वर्ड, उसको मीनिंग निकालें, लेकिन उसी से गुजर लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे वर्ड मीनिंग होते हैं ना,
उसको हम मिस कर रहे होते हैं, ठीक है। और यही प्रॉब्लम हमेशा मेरे डिस्कशन यही प्रॉब्लम रही है कि इस तरह जो वर्ड मीनिंग है इसके साथ इस तरह डील किया जाए कि हमारा रीडिंग भी जो डिस्टर्ब ना हो, जो भी चीज़ हम करें वो काम भी अच्छी तरह हो जाए और एक बहुत मसला ना बने हमारा। गुड क्वेश्चन। इसका आपकी उम्र कितनी है? अभी 18 years to 18 साल प्लस माइनस। अभी आपकी उम्र 18 साल है, ठीक है। बेर मिनिमम आपको 21 साल की उम्र में जाके आपने CSST कर पहले अटेम्प्ट देते हैं तो 21 साल आपको चाहिए बेर मिनिमम, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो अभी 3 साल का क्वेश्चन तो वैसे मिल गया आपको, ठीक है। आप तो लकी हैं, आपको भी पता चल जाएगा। हमें बात बताएगा, मैं आपको इसकी मिसाल देता फिर अपने टीचर के साथ जिनसे मैंने पहले बात की। हमारे जो टीचर थे, ही वाज रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। टीसी के बाद उन्होंने टीचिंग ज्वाइन की, शौक बाई शौक से पढ़ाते थे, पढ़ते भी थे। अभी मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा कि वो कहते थे कि सर्दियों की, अभी ये लेते सर्दियों की रात दिसंबर की, ठीक है। वो कहते थे कि हमारे दौर में मोबाइल तो थे नहीं उनके, और उन्होंने एक बार उनको कहीं वजीफा मिला और उन्होंने उस वजीफे से एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 32 वॉल्यूम्स खरीदे, जिस दौर में उतने पैसों से पैसे आते थे कई। उन्होंने कहा मैंने वो यार एनसाइक्लोपीडिया अपना खरीद लिया, इतनी मोटी बुक्स होती थी जिसे आप डिक्शनरीज करते हैं, अब तो बिल्कुल आपके मोबाइल में स्मार्टफोन में आ गया ना सारा। वो कहते हैं रील वो मैंने अपनी छत के ऊपर ना एक कमरे में रखे होते थे, ठीक है। और मैं तैयारी कर रहा था और कभी कभी रात को सोते मुझे वर्ड फंस जाता था ऐसे, यार अच्छा ये नार्सिसिस्ट का मतलब क्या है, फंस गया, नहीं आ रहा। सर्दियों की रात बिस्तर गर्म छोड़ के ऊपर जाना, जाके वो वॉल्यूम्स में से 32 में से कोई वॉल्यूम पहले देखना, एंड किस में या नार्सिसिस्ट का मतलब निकालना, देखना, उसके बाद आके दोबारा सोना। और मैं बताऊं आपको कि हमने डिलिबरेटली एफर्ट की, हम पूरे डाउन पढ़ना, हमने नए था ना आपकी तरह बिल्कुल यार, हमने कहना कि आज सबको फंसाएंगे, सबको पूछेंगे सर इसका मतलब बताएं। बिलीव यू मी, मैं 365 दिन लगातार कोशिश में रहा और मैं एक दिन भी ये नहीं हो सकता सबको फंसा सकूं। जो लफ्ज लिखता था उनको पता होता, और एक मतलब नहीं 3 मतलब बताते थे। एडजेक्टिव्स होता तो ये, एडवर्ब तो ये, नाउन तो ये, फलाना तो ये। तो रीजन बीइंग की जो लर्निंग और वो जिस तरह उन्होंने सीखा, फिर मुझे ये मेरे ध्यान में आया, मैंने कहा यार हमने मतलब इतने कौन से कौम के बने हैं कि जो मोबाइल से एडिक्शन नहीं निकाल सकते 2 मिनट के लिए, दिल बड़ा कर रहा होता है कि जनाब सब कुछ उस पर वो कर दें, लेकिन पॉइंट ये है कि जो लर्निंग है ना ये पेन से आएगी। और आपने अभी देखिए 18 से लेकर 3 साल तक एक वर्ड आपको कितनी बार करना पड़ेगा मुझे बताएं। पहले मैं आज से आपको कहता हूँ कि आज से आप शुरू करते हैं, एक रजिस्टर ले लें साफ सब, उस रजिस्टर पे सिर्फ रोज जो लफ्ज मुश्किल लगे ना, हर रोज 10 लफ्ज लिख लिया करें। अखबार निकाली, उसमें से 10 लफ्ज लिखे, उस 10 को आगे लिखते इकट्ठा एक बार मतलब निकालिए, फिर 10 निकाले, फिर 10 निकाले, 365 दिनों में वो 3600 वर्ड बन गया। अब मैं नहीं है, मैं यकीन करता कि 3600 वर्ड से अलावा कुछ और आपसे वो करें। जिस दिन मैंने पहले दिन पढ़ा था नावल, तो मुझे 3500 बार डिक्शनरी खोलनी पड़ी थी, अखबार जितनी पढ़ी थी। आज मैं अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे शायद 2 बार भी देखनी पड़ती है, लेकिन 1 बार 2 बार, ठीक है। तो इसको कभी भी वो नहीं लेना, कोई बात नहीं है, आइडिया स्किप होता है, हो जाए फिर खोले, फिर लिखे, फिर खोले, आखिर में इतना तंग आ जाएगा आप यार पहले मैं अंग्रेजी सीधी करनी, ठीक है। तो इसको आपने डिलिबरेट एफर्ट्स के साथ और अपनी एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स की वो बनाए, अपनी वोकैबुलरी की एक डायरी, उसके अंदर रोज डॉन में से 10 वर्ड निकाल के लिखा करें और एक दूसरे के साथ कंप्लीट किया करें। हाँ भाई तुमने क्या निकाला 10 वर्ड, आओ आज हमने ये सोचे हैं, आज हम इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन अभी मजीद होंगे सेकंड माजरत के साथ, थोड़ा सा मेरी एक मीटिंग 3 बजे ऑनलाइन है, तो एक आपसे, आप ये भी फैसला कर ले दोनों में से किसने पूछना है, दोनों एक दूसरे से कर लें। Sir, first of all, thank you so much for such kind of thought-provoking event in our institute. And sir, I myself graduated from Punjab University, and my graduation is in English language and literature. And I will take my first attempt in 2026, inshallah. And sir, I have one question, and it has 2 parts. And first question is that how can we keep consistency, and how can we get rid of detractions while our CSS journey? And second question is that along with our job, how can we continue our CSS preparation? फर्स्ट इज के आपने कहा कि हाउ टू कंसंट्रेट एंड हाउ टू कीप योर पैशन अलाइव, कि मैंने यही करना है। उसकी रीजन मैं आपको स्पष्ट वे probably I can feel my feelings in you since when I appeared for the first time I was having no job, but in the second attempt when I have been allocated in the PSP, I was serving as section officer, okay,
इन ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। कैन यू बिलीव, मैं वहाँ पे इतना फंस गया, मेरे पास इतनी वो हो गई कि दिन को मैं सुबह 8 बजे 9 बजे से लेके 5 बजे तक सेक्शन ऑफिसर था पहले। उसके बाद मैंने एमफिल में एडमिशन लिया था एनडीयू के अंदर, मैं एमफिल की क्लासें लेता था 8 बजे तक। 8 के बाद मेरे पास टाइम बचता था तो मैं सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा था पीएचडी के लिए, क्योंकि ये भी जरूरी था, जॉब तो थी कोई नहीं, यहाँ तो हमारे नाम को लैंडलॉर्ड है, पैसे आ रहे हैं, ये भी जरूरी है कि एडमिशन ले लिया हुआ इसके अंदर। इसके बावजूद आपने मैनेज करना है, स्टिल आई हैव 2 days ऑफ वीकेंड, कोई वीकेंड पे घर नहीं जाना, कोई बात नहीं, 1 साल काम कर जाएंगे, कोई आपको करवाना नहीं देता, ठीक है। जिस दिन वर्दी पहन के जाएंगे सारे जफ्फी बढ़ा कर डालेंगे आपको, ऐसे ही है। तो अपने वीकेंड को आप छोड़ दे। फिर मैं क्या करता था, रात को मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई बंदा कम सोने से बीमार हुआ हो, ज्यादा सोने से जरूर हुए होंगे। इसी तरह ज्यादा खाने से बीमार हुए होते, कम खाने से बीमार नहीं होते। तो आप अपनी नींद कम करें, आप अपनी लग्जरीज को कम करेंगे, उस पे है। अभी देखिए इस स्टेज पे है, आपको मैक्सिमम 1 से 2 साल की मेहनत करनी पड़ेगी, 1 से 2 साल, 2 साल कर लेंगे, 3 साल कर लेंगे मैक्सिमम बॉस पे। तो जो पैशन है ना, द फायर इन द बेली, दैट कीप्स ऑन बर्निंग, इट विल डिराइव यू टू योर फाइनल डेस्टिनेशन, अदरवाइज देयर इज नोबडी एल्स हु विल मोटिवेट यू। मैं आऊंगा, मैं लेक्चर देके चला जाऊंगा, जब तक आपकी इनर इनेट गति करनी, मैंने करना है, मैंने करना है, ठीक है, तो तब तक उसको नहीं। और जहां तक वो दूसरा क्वेश्चन है जॉब के साथ, तो जॉब इज अबाउट मैनेजमेंट। बिलीव यू मी, हम तो ये है, वो जो 12th फेल मैंने मूवी बताई थी, 12th फेल आपने देखी सबने, तो 12th फेल में वो चक्की के अंदर वो कर रहा होता है, ऐसे ही चक्की का आटा कर रहा होता है, उससे मुश्किल जिंदगी तो नहीं है आपकी, उससे आसान ही है ना। तो अगर वो कर गए, चलो वो फिल्म ही सही, काम भी कर लेंगे, आपसे सिर्फ लेक्चर लेना है। मैक्सिमम 5 से 6 घंटे अगर वीक के अंदर बंदा निकालने पड़ेगी पर डे कोशिश करेंगे 3 से 4 घंटे पर डे, फिर वीकेंड पूरे का पूरा लगाए, इतनी ही, ठीक है। सब प्रैक्टिस विद जॉब नो प्रॉब्लम, चलते रहेंगे विद जॉब, इधर भी आप सीख लेते हैं, कर रहे होते हैं सारी चीजें साथ साथ। हाँ जी, आप दोनों में से किसने फैसला किया है, आप पूछेंगे लास्ट क्वेश्चन। Sir, my name is Anupam and I am from Kilo Sakla, sir. First of all, I've been sorry for being late. Congratulations to you for becoming a writing typer. So, I would love to know the genre and tactics you adopted for study, sir. About The genre, the way and the strategies you adopted for study, sir. How you study, sir? the strategies, okay, so you want to see the last thing first. अच्छा, स्ट्रेटजी यार ये है कि जिस चीज में आप थोड़ा सा कंटेम्पलेट करना है अपने आप को ना, देखिए हम सब माइंड जहाँ बैठे हैं ना, हर किसी की कैपेसिटी कैपेबिलिटी वेरी कर रही है। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है एक बंदे ने, एक ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, एक ने IR पढ़ा है। मैं नहीं कहता कि हम सब इक्वली उस पे माइंड में हैं, बट पॉइंट ये है कि आप लोग थोड़ा सा अपने को फोकस करना है कि यार मेरा ये एरिया, और इसमें खुद से कभी ना शर्माएं। इशू ये होता है कि हम अंदर ही अंदर से क्या करते हैं, यार ये तो मेरी कमजोरी है, इसको हमने बता दिया तो फिर तो हम वल्नरेबल हो गए ना। अब अंदर का तो कोई नहीं बताएगा ना, शेयर करेंगे, लेकिन आपको इनर सेल्फ में एक वो आती है कि यार ये मेरी कमजोरी है। मैं आपको अपनी फ्रेंकली बताता हूँ, मेरी अंग्रेजी कमजोरी थी, ठीक है, और फिर मैंने अंग्रेजी को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाया। इसमें मैंने पिछले दिनों मैं मैसेंजर पे उस पर मेरे एक मैसेज मिला, जब मैंने देखा, अपना मेरा एक दोस्त था, अभी मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ आपको, स्ट्रेटेजी करके। फर्स्ट ईयर में हम लोग थे सर, फर्स्ट ईयर में वो गिलगित से था, बहुत बैकवर्ड एरिया से पठान था कुछ, हाँ गिलगित से था, एंड वी यूज्ड टू लाफ ऑन हिम। उसने मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की 50 बार हल की थी, यहाँ गया वो प्रैक्टिस और वो रिपीटेडली, मतलब उसको इतनी मुश्किल लगती थी मैथ कि उसने 50 बार वो मैथ की। और अक्सर हमने देखा कि मैथ में 100 नंबर आ जाते हैं या 75 आ जाते हैं। यकीन करें कि उसके 100 में से 50 बार करने के बाद 48 नंबर आए। कितने? 48। और मुझे जब पिछले दिनों में, जैसे 10 दिन की बात है, पहले जब उसमें मैंने स्टेटस देखा तो वो मैथमेटिक्स का एसोसिएट प्रोफेसर है इंग्लैंड में आजकल। मैंने उससे कहा तुम कहाँ चले गए? वो कहता बस यार मैंने मैथ को जो है ना पकड़ा था, इसलिए मैंने डिलीट किया था, मैंने इसी को पकड़ लिया, और आज वो एसोसिएट प्रोफेसर है उसका इंग्लैंड के अंदर। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा यार तुम तो वो थे जो 50 बार करने के बाद भी 48 नंबर आए थे तुम्हारे। तो इसी बात उस पर वही है कि हमें इस पे हंसते थे, हमने उसी को पकड़ लिया। तो पॉइंट ये है कि स्ट्रेटजी या वो है, वो आपने अभी से ये देखें कि किताबें पढ़ें, ठीक है, अखबार पढ़ें जो इसके लिए रेलिवेंट है, किताबों के अंदर भी जो आपको शौक है। इसमें कभी ना सोचे कि यार मैं तो लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, शायद मेरे साथ को नॉवल, मैंने नॉवल पढ़े नहीं, मुझे नॉवल पसंद ही नहीं है,
लिटरेचर के बैठे जी कि यार सर आपने क्या रुखी सुखी चीजें पढ़ते रहे हैं, ज्योग्राफी वाला आएगा, कोई भी उस पर है, तो यू नीड टू डिफाइन योर इंटरेस्ट, फिर उसके अंदर पूरे का पूरा घुस जाना है। अदरवाइज जो बाकी स्ट्रेटजीज है वो है पेपर प्रेजेंटेशन कैसे है, क्वेश्चन कैसे इक्वली टाइम को डिवाइड करना है, अंग्रेजी की राइटिंग अच्छी लिखनी है। होता ही है, मैं आपको चलो ये भी ये स्टेज की बात नहीं है, ये आखिरी स्टेज की बात है, वो ये है कि क्वेश्चन पेपर में ना अभी आप पेपर दे रहे होते होंगे, ठीक है, ये आप लोग सब टीचर्स भी इसको देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, इनके पास 4 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे होते हैं, ये एक मिसाल बता रहा हूँ स्ट्रेटजी के भी, ये 15-20 स्ट्रेटजीज हैं इसकी। अच्छा, वो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, इसको अगर मैं चलो ग्रुप एमसीक्यूज निकाल तो हर क्वेश्चन के 35 मिनट बचते हैं। वो क्या करेंगे, पहला सवाल बहुत अच्छा आता है, उसको लगा देंगे 1 घंटा, ठीक है, अगले क्वेश्चन को लगाएंगे 40 मिनट, और जब आखिरी क्वेश्चन आएगा उसको लगाएंगे 10 मिनट, और उसमें गंद मार देंगे, बस दर लिख दो यार, कुछ नहीं आता है। ऐसा ही है, मेजोरिटी यही करते हो ना। होगा क्या, तो पहले सवाल में आपको 20 में से वो नंबर देगा 16, आखिरी क्वेश्चन में आपको 20 में से नंबर देगा 2, तो लिखे कुछ नहीं है। 10 मिनट में तो आपने गांधी मारा होगा, ठीक है, जो लिखा है वो इतना गंदा लिखा है, पढ़े नहीं जा, लेजिबल ही नहीं है, तो कितने नंबर बने, 18। अच्छा, मैं क्या करूंगा कि मैं जो सबसे अच्छा आता है उसको भी 35 मिनट दूंगा, और जो सबसे फारिग आता है उसको 35 मिनट दूंगा, आखिर में जो करूंगा, तो मुझे वो दोनों में क्या करेगा, 14 दे देगा। मेरे कितने हो गए, 28। 10 नंबरों को तो मार्जिन मैंने इसी में ले लिया। स्ट्रेटेजी, सो थिंक अबाउट पेपर्स, थिंक अबाउट टेक्निक्स, इसके बारे में कि अच्छा यार छोटी चीजें जिनके ऊपर हम काम करके सारे वही किताबें पढ़ के जाते हैं एफएससी के अंदर, क्यों एक टॉपर बन जाता है और एक एवरेज पे पास होता है। स्ट्रेटजीज, ठीक है। आई रेस्ट माय केस हियर, आई एम सॉरी, मुझे बड़ा मजा आ रहा था, बड़े अच्छे क्वेश्चन, मुझे खुशी हुई कि क्वेश्चन। आखिरी सर बात 1-2 मिनट, सर आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान इज गुड। बलूचिस्तान में थोड़ा सा ये है कि अपना हैक्टिक है, लाइक यहाँ जो चीज़ें शायद पंजाब में भी उस स्टेज पे डेवलप हो गई है, यहाँ रुडिमेंट्री है कि शायद हमें उतनी मेहनत अभी जाकर जिस तरह बच्चे ने पूछा था सर आप वो कर पाते हैं वो कर, तो कभी कभी स्पिरिट इतना डाउन हो जाता है कि यार ये भी चीज़ हमने करनी है, लेकिन उसका फायदा ये है कि उतनी हमारे पास स्पेस भी ज़्यादा है, वहाँ पे अदारे बने हुए हैं, एस्टेब्लिश हैं, वहाँ स्पेस कम है। यहाँ चूँकि अदारे ही नहीं है तो स्पेस ज़्यादा है, हम कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है, तो ब्राइटर साइड देखनी चाहिए। यह है कि मैं रोता रहूँ, मैं क्रिप करता रहूँ, मुझे इतनी दूर भेज दिया है, तो भाई किसी ने घर से तो नहीं कहा था कि आ जाओ पुलिस में, खुदा है हम, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल सर। Thank you so much. It was great and inspiring and informative session. Now, in the last, I would like to invite our honorable principal. Please come toward the stage and conclude the today's session. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected guest speaker, teachers and dear students. So on behalf of Al Residential School and College Ziara, I would like to extend my heartfelt gratitude to you for sharing your experiences and knowledge. Sir, thank you so much for being here, and it is a great honor and pleasure for us to host you in this institute. And once again, sir, I am very thankful that you spare your time and come into the institute and aspire our students, and hope these students inshallah will get motivation from your talk. Sir, your talk was not only inspiring for us, it was deeply motivating and inspiring all of us. Thank you so much for being here, sir. Thank you so much. In the last, I would ask to Principal Sir, please come to the stage and give the shield to our chief guest. सर इसकी जरूरत नहीं, यहाँ पे पहले देख लीजिए हमें। ये हमारा अपना दफ्तर है, ये हमारा अपना घर है। So it's always a pleasure. तो इनमें से मैंने जो इंस्पायरमेंट के लिए आएगा ना, उसको हमने ग्रुप में रखना है, हमें ग्रुप में, उसमें मैं भी रहूँगा। इनके साथ आई कीप बाय शेयरिंग एवरी डे कि यार ये चीज़ अच्छी है, ये इसको पढ़ लो, ये आर्टिकल अच्छा है, इसको पढ़ लो। सर थैंक यू सो मच। See you guys.